and thank you, Shahzad, for joining this little challenging conversation, जिसमें काफ़ी हमारे अभी things to do हैं, things clarity में हैं, so there's a lot happening around this topic. So आप सबका शुक्रिया, because I think हमें अपने audience को clarify करने की इस टाइम पे अब जरूरत है बहुत सारी चीज़ों पे, और कुछ चीज़ों पे हमें क्लैरिटी लेने की जरूरत है कि हम किस डायरेक्शन में आगे चीज़ों को लेकर जा सकते हैं. सो आई वुड अप्रिशिएट, मैं इंट्रोडक्शन करा सकता हूँ, बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर हम सब अपनी अपनी क्विक 2-minute इंट्रोडक्शन करा सकें, एंड देन आई विल स्टार्ट with few thoughts, but then we'll let our panelists to have their own thoughts as well, and also have Q&A from the audience. हाई लेवल आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स पॉलिसी के ऊपर, कि इसका पॉलिसी पर्सपेक्टिव क्या है जो हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री का जनरल ले रहे हैं. हाउ इज द गवर्नमेंट लुकिंग एट इट फ्रॉम द मिनिस्ट्रीज पर्सपेक्टिव, जहां आयशा आपकी फीडबैक बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी. शहजाद, आपके बहुत सारा नॉलेज in terms of how the payment ecosystem is evolving and complementing e-commerce landscape is also very very important. और अनुष्य, बहुत बड़े सवाल आते हैं कि फोन ऑर्डर किया था, ईंट निकल आई, कस्टम चीज भेजी थी, रिटर्न आ गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मर्चेंट प्रोटेक्शन. सो वुड लव टू हैव योर थॉट्स कि कैसे हम बाइफरकेट करते हैं लॉ में, अभी तक हमारे पास क्या क्या फैसिलिटेशन है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं टू ब्रिंग इन एनी पॉलिसी इंटरवेंशंस, और अदरवाइज इवन फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव कि क्या क्या कुछ हो सकता है. बट वुड अप्रिशिएट अगर आप सब अपनी introduction quickly करा सकें, starting with Aisha, then Anusha and Shahzad, and then we'll jump into these deep dive questions. जी, मेरा नाम आयशा उमेरा, I'm Joint Secretary in the Ministry of Commerce, और I'm working on trade issues for the last 25 years. और I'm a civil servant. I've worked in different ministries, and I've worked in Pakistan mission to WTO in Geneva for 5 years. And now I'm working on e-commerce policy in the Ministry of Commerce. Thank you, Ji Aisha. Ji Anusha. जी, मेरा नाम अनुषा शायगान है. I'm a technology lawyer by qualification. I graduated almost over 10 years ago. तब मेरी qualification human rights में थी, क्योंकि तब time इस तरह का था country में. But over the years, I found that this was something that I was more passionate about. So I just finished my LLM, wrapped it up this year in technology, media and telecommunications law. और मेरे पास dissertation की option थी, जिसमें मैंने 2 dissertations रखी थी, one of which was on e-commerce and online dispute resolution. और उस time पे government ने they kept releasing a new policy throughout the year, so I had to review the e-commerce policy at least 3 times. तो इसलिए आप मुझसे अगर questions पूछें तो you know this is like this is something that I have बहुत सर खपाया मैंने इसके साथ. Other than that, I of course work with Coaching the Law. It's a law and technology based initiative, and it's Pakistan's largest legal analysis publication. तो उसमें भी हम as a research and think tank काम करते हैं. So we've had a lot of people working on this policy as well. Excellent. I think that would be really valuable. So अभी आपको तंग करेंगे, we're starting slow, but we'll just pick it up in terms of complex questions. जी शहजाद. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शहजाद शाहिद है, and I am currently the elected chairman of Pasha. Engaged with the industry for over 10 years now. Professionally speaking, otherwise I am heading a company called TPS, which is kind of under the new terminology of fintech. It's a Pakistani company with Pakistani built technology products that are deployed in Africa, Middle East, even Europe, South Asia, and Pakistan. So our focus or our core area is digital payments and digital banking. So e-commerce is certainly an area where I'm directly engaged for over 20 years now. Excellent. Zabardasti. Aisha, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि before we deep dive into the policy for the benefit of general audience, जो शायद बहुत ज़्यादा policy oriented नहीं होंगे,
एंड स्पेशली मे बी बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरली टेक्नोलॉजी और पॉलिसी के इंटरसेक्शन पे कम लोग हैं. आई वुड लव टू अंडरस्टैंड, अगर आप हम सबसे शेयर कर सकें कि जनरली पॉलिसी फॉर्मुलेशन का क्या प्रोसेस होता है, और अभी तक जनरल प्रैक्टिस में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन कैसी रहती है इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, स्पेशली फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव. सो वुड लव टू अंडरस्टैंड कि हम ये क्या प्रोसेस है. जिस तरह अनुषा ने कहा कुछ देर से प्रोसेस चल रहा है, तो हाउ डज ऑल दिस वर्क, ताकि हम अभी तो ई कॉमर्स पॉलिसी की बात करें, बट इन द कमिंग डेज इन द नॉलेज इकोनॉमी वी सी दैट देयर विल बी न्यू पॉलिसीज रिक्वायर्ड. तो बाकी जो हमारे मेंबर्स हैं पाशा के, आई वुड लव देम कि वो समझना चाहें कि अगर कल को क्लाउड की पॉलिसी आनी है, डेटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बेशुमार चीजों की नई पॉलिसीज आ रही हैं, तो ये फॉर्मूला, ये प्रोसेस कैसे चलता है? जी, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस जो है, जैसे आपको पता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का इफेक्टिव फीडबैक आना और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है. तो एज अ मिनिस्ट्री तो हमारी कंट्रीब्यूशन मेनली ये होती है कि हम प्राइवेट सेक्टर के तमाम स्टेक होल्डर्स को बहुत इफेक्टिवली एंगेज करें. देन ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है. लेकिन ये कि चूंकि एक पॉलिसी बहुत सारी और पॉलिसीज के साथ उसका इंटरफेस बना हुआ होता है, तो उस हवाले से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि ना सिर्फ स्पेसिफिकली अफेक्ट होने वाले प्राइवेट सेक्टर से हो, बल्कि उससे रिलेटेड अलाइड भी जो इंडस्ट्रीज हैं उन सब के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हो. फॉर एग्जांपल जैसे ई कॉमर्स के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, तो पाशा वी कंसिडर्ड इज द मोस्ट रेलिवेंट एसोसिएशन बिकॉज वो आईटी पे बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, तो वी एंगेज देम. बट उसके साथ साथ जैसे आपको पता है लॉजिस्टिक्स इज आल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. तो वी एंगेज लॉजिस्टिक के जो मार्केट के प्लेयर्स थे, प्लस पब्लिक सेक्टर में पाक पोस्ट को एंगेज किया. इसी तरह और जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड एसोसिएशंस थी, इवन हमने फ्रेट फॉरवर्डिंग और उसमें जो लोग उसकी फैसिलिटेशन में इन्वॉल्व थे उनसे भी रब्ता किया. तो ये इसमें एक मल्टी स्टेक होल्डर प्रोसेस के थ्रू कंसल्टेशन होना, उसको डॉक्यूमेंट करना और उसको किसी ऐसे एक फ्रेमवर्क में लेकर आना कि वो फिर एक पॉलिसी की शक्ल बने और उसमें जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें एडिशन हो. ये हमारी तरफ से एज अ सिविल सर्वेंट हम वी ट्राई आवर बेस्ट कि इस प्रोसेस को हम अच्छी तरह करें. और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होके उसने कैबिनेट में जाना है, फिर कैबिनेट में उस पर प्रोसेस होना है. देन इट डिपेंड्स कि अगर तो वो पॉलिसी और कैबिनेट अप्रूव कर देती है, या ये कि उसको एक्ट बनना है, जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे काम हो रहा है, तो देन इट हैज़ टू गो टू द पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रोसीजर्स. तो इसमें आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि इफ स्टेक होल्डर्स आर प्रॉपरली कंसल्टेड, जैसे वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पाशा, क्योंकि इसमें हमें पहले दिन से ही उनकी बड़ी ओनरशिप नज़र आई. और अच्छी पॉलिसी वही बनती है जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर लीड ले और उसकी ओनरशिप उसके हाथ में हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ने तो फैसिलिटेट करना है और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है कि बिजनेस फ्लरिश करें. तो अल्टीमेटली तो इसमें जो है इनपुट भी प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़रूरी होता है और उसकी कामयाबी भी इसी में होती है कि उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो. बिल्कुल ठीक है जी, एक्सीलेंट. एक थोड़ा सा मेरे जहन में हमेशा क्वेश्चन आता है, एंड मैं अब समझना शुरू हो गया हूँ आहिस्ता आहिस्ता, बट अगेन फॉर द जनरल नॉलेज, बहुत सारा लोग सोचते हैं कि ये ई कॉमर्स की पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे क्यों चलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास क्यों नहीं रही. तो इस पे भी एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग या आपका पर्सपेक्टिव क्या है, वुड लव टू नो दैट. जी, वो देखें, मैं इस लिहाज से अपने आप को थोड़ा सा लकी समझती हूँ कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन जिनीवा पाकिस्तान मिशन में WTO के इश्यूज पे. तो अगर आप देखें तो फॉर द लास्ट 5-10 years अब जो WTO की रिपोर्ट्स आ रही हैं, WTO की जितनी भी डायलॉग डिस्कोर्स चल रहा है, वो एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है कि ट्रेड के करने का तरीका बदल रहा है. तो ये जो तरीका बदल रहा है ये आईटी लेड हो गया है. मैन्युफैक्चरिंग में आईसीटी की बात हो रही है, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है दैट इज आईसीटी लेड. तो आईटी हैज ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड
और नए तरीके से बिजनेस होना शुरू हो गया, नए तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो गई है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैन्युफैक्चरिंग भी आईटी मिनिस्ट्री के पास चली जाए, कॉमर्स भी आईटी मिनिस्ट्री के पास, एग्रीकल्चर में भी ई एग्रीकल्चर आ गया, ई हेल्थ आ गई है। तो इसमें यह है कि आईटी इज एन एनेबलर, जिससे कि अब नए तरीके से जो करने के काम हो रहे हैं उनको सबने सीखना है, हर डिपार्टमेंट ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। और ई कॉमर्स जो है इट स्टिल रिमेन्स कॉमर्स, इट इज ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो नए आ गए, एंड वी हैव टू इंश्योर कि हमारे एसएमईज जो कि 3.2 मिलियन है in Pakistan, they need to understand and they need to know these new approaches to trade. And this structural transformation has actually opened up immense opportunities for SMEs, youth and women entrepreneurs, क्योंकि वो level playing field दे दी है IT की वजह से। तो इस लिहाज से IT मिनिस्ट्री IT इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं, अपनी स्पेसिफिक डोमेन में, जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का बनाना है, ये क्लाउड पॉलिसी है, उसमें डेफिनेटली दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कनेक्टिविटी सबसे इम्पोर्टेंट, आई थिंक कनेक्टिविटी उनका एक कोर बेस लाइन जो बिल्कुल 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 इंटरनेट की अच्छी जो है क्वालिटी इंटरनेट सर्विस पूरे मुल्क में अवेलेबल हो, वो जितनी भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज और उन सबको इंश्योर करना, उसमें IT has a very important role. They are one of the pillars of the e-commerce policy. But e-commerce policy has to be with the Ministry of Commerce because it is still commerce. बिल्कुल ठीक है, आई थिंक that sums up the whole reason. बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। अनुषे, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा कि इस पॉलिसी आपने डिफरेंट उसकी वेरिएंट्स देखती रही है एवोल्यूशन के, कि कैसे इवॉल्व करती रही पाकिस्तान की पॉलिसी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि कैसे इवॉल्व कर रहा है। आज भी बहुत सारे लोग डिफरेंट फोरम्स पे ऑनलाइन अपनी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बट बहुत सारे कंज्यूमर्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मर्चेंट की प्रोटेक्शन भूल जाते हैं कि मैंने तो मंगवा लिया, मेरी प्रोटेक्शन होनी जरूरी है, बट मर्चेंट की भी। तो थोड़ी सी लीगल इम्प्लीकेशंस इस पॉलिसी से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मर्चेंट प्रोटेक्शन की तरफ आई हैं, वुड लव टू अंडरस्टैंड कि आपके ख्याल में क्या चैलेंजेस आए हैं या क्या नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं और कैसे हम इनको, हाउ शुड वी लुक एट देम? Right, of course. Just to start things off, जो हमारे existing laws हैं वो तो obviously they cater to traditional commerce, और common law countries में अक्सर कहा जाता है कि like the approach has to be technology neutral. ये नहीं देखा जाएगा कि e-commerce है या regular commerce है या regular contract law है तो उसको हम अलहदा से कोई चीज़ उसके लिए बनाएं या अलहदा से पॉलिसी बनाएं या अलहदा से उसकी कोर्ट्स बनाएं। लेकिन सिविल लॉ कंट्रीज में ये कहा जाता है कि it has to be technology specific, it has to be sector specific, but Pakistan is a common law country. However, Pakistan is according to जो studies हो रही हैं और जो मेरी रिसर्च में जो चीज़ सामने आई थी वो यही है कि पाकिस्तान को जो चीज़ सूट करेगी, it will be more of a blended kind of approach where you do have the traditional contract law and commerce की सारी जो traditional commerce के जो सारे mechanisms हैं, but you must cater to e-commerce as well because of our population, because of our youth bulge, because of our the youth that is going to enter the workforce, so freelancers जो हैं उनको भी protect करना है, because and because of our unique geographical position as well, we're in a very good position to, you know, China से हम close हैं, तो हमारा उस हिसाब से जो deliveries और logistics हैं उस हिसाब से भी I think a blended approach would be more suitable. So as far as the laws and some of the ये जब आप, सॉरी आप इंटरप्ट करें, जब ब्लेंडेड आप बात करें तो ये आप कॉमन लॉ के एंगल से बात करेंगे, कॉमन लॉ वर्सेस स्पेसिफिक लॉज, तो उन दोनों का ब्लेंड हमें ठीक है जी, because blend जो है ये this has been working in the UK और हमें भी वही चीज सूट करेगी as far as this policy and moving forward. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे हमें व्हाट्स द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस पॉलिसी? राइट, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं अब उसमें ये है कि एक तो सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स कंसिडर करने पड़ते हैं। अब the e-commerce policy that we have, it does not address any of them at the moment.
जो हमारा सिर्फ जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन दी हुई है ऑनलाइन मार्केट प्लेस की, बट Correct. अगर लीगल टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए देयर आर ब्रॉडली अबाउट 8 कैटेगरीज, उसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल आ जाता है, और गवर्नमेंट ने सारे मैकेनिज्म तो सारा कुछ बता दिया, बट ये नहीं बताया कि अगर G2C मॉडल्स हो तो गवर्नमेंट के साथ आप कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं किसी चीज की, तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप फिर किधर जाएंगे, वो फिर ऑम्बड्स पर्सन और वो वाले सारे प्रोसेसेस आ जाते हैं. सो दैट हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द ई-कॉमर्स पॉलिसी. इसके अलावा यही है कि देयर आर एंड देन देयर आर दीज थिंग्स लाइक आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो कि नहीं कर सकते ओवर ई-कॉमर्स. आप लैंड के बहुत सारे केसेस यू कांट डू. सो Zameen.com की जिस तरह की बिजनेसेस हैं, they're doing a good job, but ultimately it has to be done in person because our law says so. और ट्रस्ट्स नहीं आप बना सकते ऑनलाइन, यू नो आप वसीयत नहीं आप ऑनलाइन यू नो रजिस्टर कर सकते. सो इस तरह की जो चीजें हैं दोज आर नॉट. वैसे ऑन अ लाइटर नोट आपने वसीयत की बात की, तो आई अज्यूम के अंडर ETO 2002 एनी डिजिटल डॉक्यूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट. तो अगर मैं अपनी एक वसीयत किसी को ईमेल कर दूं और वो एक वाहिद वसीयत हो, तो would that be considered a kind of a it legal might tender? show it might show your intention, but then फिर वो बाद में यही चीजें आ जाती हैं ना कि हमने ई सिग्नेचर्स नहीं प्रॉपर्ली डेवलप किए. अब आपने मर्चेंट और कंज्यूमर की जो बात की थी, मर्चेंट्स के लिए हमने इतना वो बिजनेसेस के लिए इतना वो कर दिया है कि SECP से जब वो रजिस्टर कराएं तो एक उनको ऑप्शन दे दी है कि दैट दे कैन डू इट थ्रू डिजिटल सिग्नेचर्स या ई सिग्नेचर्स रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स के पास ऐसी कोई चीज नहीं है. The max they can do right now is probably जब वो क्रेडिट कार्ड या इस तरह के बैंक्स के थ्रू पे करते हैं तो तब शायद उनकी डिजिटल आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट हो जाए, लेकिन अदरवाइज you know there's no way of finding out So that, we for have example, if you're a writing a will, authority. no way to find out if you wrote it. Okay, so there's an authority ECAC जिसका काम है डिजिटल सिग्नेचर्स का. So I think that's a interesting mention कि हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एंगल से उस चीज के ऊपर भी करना चाहिए. So एक तो ये एंगल है, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द लीगैलिटी ऑफ इट, बट एक और पर्सपेक्टिव के फ्रॉम अ प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव कि मेरी वेयर कैन आई गो एंड मेक अ कंप्लेंट ऑफ मतलब डू आई रियली नीड टू गो टू अ कोर्ट अगर मेरा कोई इशू है किसी ई कॉमर्स मर्चेंट के साथ, या आर देयर प्रीलिमिनरी ईजियर लाइक जहां आर्बिट्रेशन या मुझे कोई और ऑप्शंस मिल सकें और मैं क्विकर जस्टिस या फास्टर जस्टिस जो है वो मैं एक थर्ड पार्टी कर सकें लीगली हमारे लिए एज अ कंज्यूमर. राइट. सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं अंडर ई कॉमर्स, उनको यूजुअली जो आजकल जो आपने बहुत सुना होगा ODR का नाम, so that's online dispute resolution. I know a lot of people buy from AliExpress, so and it's fairly good because if something doesn't work out, there's an instant mechanism where you can make a complaint and then they sort of refund you within 24 hours, I believe. पहले eBay जब हम use करते थे तो eBay पे ये mechanism होता था सबसे पहले. So इस तरह के online dispute resolution की जहाँ तक बात आती है, again Pakistan is encouraged to take a blended approach, which is known as the OADR, which means कि online dispute resolution और आपकी traditional जो alternative dispute resolution है, आप उन दोनों को combine कर सकते हैं because of the structure of our legal setup. That essentially means कि आप online it's an automated process. वहीं पे आप complaint करते हैं, वहीं पे आपकी it goes forward and they reach a conclusion, and then उसकी जो enforcement होती है वो फिर यही है कि automatically seller के end से हो जाती है. और पाकिस्तान में जो सूट करेगी चीज वो यही है कि if in case things don't work out, then you should at least have the right to appeal to go to a consumer court or a commercial court otherwise. So that's sort of a blended approach that's recommended for Pakistan. इसी तरह एक स्पेसिफिकली CADR भी कहा जाता है, कंज्यूमर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. सो दीज आर ये डिफरेंट मॉडल्स हैं. जो हमारी ई कॉमर्स पॉलिसी है वहाँ पे लिखा हुआ है कि it shows that they're leaning more towards the Chinese ODR system,
ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है ODR प्लेटफॉर्म्स और प्राइवेट कंपनीज भी डेवलप कर सकती हैं और हर बिजनेस अपने एंड पे अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं. लेकिन I would suggest that a more suited one would be from the European Union, जो उनका डायरेक्टिव पे बेस्ड है ODR मॉडल. That's I think more suited because उसमें there are better protection mechanisms for consumers. उसमें sellers को भी facilitate किया गया है, of course, and because we're talking about cross-border flow of trade, तो लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं, करेंसी कन्वर्जन की भी जरूरत होती है. सो फॉर एग्जांपल मिस आयशा मेंशन्ड स्विट्जरलैंड. मैं पहली दफा स्विट्जरलैंड गई थी, दे पुट अ कॉमा इंस्टेड ऑफ अ डॉट इन देयर करेंसीज. तो मुझे जब बिल आया था तो आई ऑलमोस्ट हैड अ हार्ट अटैक बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज फिगर टू पे. तो इस तरह की जो चीजें हैं, ये हमें नहीं पता लग सकती. These are issues related to cross-border data as well as financial transactions. तो वो फिर उसमें AI आ जाती है आपकी, which can automatically translate into your local language. करेंसी कन्वर्जन आ जाती है, क्लाउड स्टोरेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर. और आजकल यही कहा जा रहा है कि जिस तरह SMEs वगैरह हैं उनको क्लाउड बहुत सूट करेगा. तो एक मैं इस पे आप पे बाद में आना चाहूंगा, बट दो बातें जस्ट टू गिव यू हेड्स अप. एक कंज्यूमर काउंसिल्स जो हैं, थोड़ा सा मैं आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि वो उनका क्या रोल है बिटवीन कोर्ट्स एंड द कंज्यूमर्स, और उनकी लीगल जुरिसडिक्शंस वगैरह वो क्या हैं, और आल्सो द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पे भी थोड़ा सा वी कैन प्रॉब्ली हैव अ कन्वर्सेशन देयर. इन द मीन टाइम शहजाद, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि हम सब जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, पॉलिसी की, एंड पे अगर आपने हमारी पेमेंट ऑनलाइन ना रिसीव कराई तो सारी कॉमर्स की वैल्यू चेंज जो है वो नॉन डिजिटल रह जाएगी. सो अभी तक पाकिस्तान जो है वो एक काइंड ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉलो करता है जिसको रोपो कहा जाता है, रिसर्च ऑनलाइन परचेज ऑफलाइन. सो टेक्निकली स्पीकिंग, जब आप डिस्कवरी ऑफ अ सर्विस और प्रोडक्ट ऑनलाइन कर लेते हैं, यानी मैंने अगर एक राइड ऑर्डर करनी है ऑनलाइन, तो मैंने वो अपनी मोबाइल ऐप के अंदर तो कर ली, ऊबर या करीम या रोमर पे या किसी पे, बट जब मैंने एंड पे ट्रांजैक्शन कैश में की तो मेरा वो वाला पार्ट मिसिंग रह गया, एलिमेंट, कि मैं वो डिजिटल कर सकूं. और हम ये भी सब रियलाइज करते हैं कि अगर हमारे पेमेंट डिजिटल नहीं होगी तो हमारी इकोनॉमी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी एक मिसिंग एलिमेंट रह जाता है लार्जली, जो कि पब्लिक सेक्टर प्लानिंग में और स्ट्रैटेजी में और साइड पे जाके चैलेंजिंग होता है. तो मेरा एक जो मिलियन नहीं बल्कि $1 बिलियन क्वेश्चन या $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है आपसे, कि आज तक 70 साल में, चलें वो भी निकाल दें, पिछले 10 साल भी ले लें या 15-20 साल भी ले लें, में हम अभी तक 20% ऑफ बैंक्ड इकोनॉमी पे क्यों खड़े हुए हैं? What are the challenges जो आपने अपने इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस में देखा होगा कि हम डिजिटल इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पेमेंट्स की तरफ इतनी अडॉप्शन फास्ट ट्रैक क्यों नहीं कर पाए हैं, जबकि हमारे जैसी और कंट्रीज जिनके लाइफ साइकिल हमारे करीब हैं या जिनकी इकोनॉमीज हमसे मैचिंग हैं, दे हैव रियली सक्सीडेड इन गेटिंग टू दैट पॉइंट. इवन जो हमसे शायद इकोनॉमी वाइज इतने स्ट्रांग ना हो, वहाँ भी शायद वहाँ जो मोबाइल फोन्स हैं वो यूज करते हों, इन स्पेशली इन अफ्रीकन इकोनॉमीज, सम ऑफ देम फोन्स वो यूज करते हैं बेसिक फीचर फोन, बट उनकी मोबाइल पेमेंट प्रोपोर्शन इज ह्यूज. एंड व्हाई इज दैट सो? हम व्हाट इज, वो क्या इशू रह गया, वो क्या मिसिंग एलिमेंट है या पॉलिसी इंटरवेंशन है कि हम अभी तक ये पेमेंट्स वाला जो है एंगल क्यों नहीं कवर कर पा रहे हैं? जी बदर, ये सवाल यकीनन $1 बिलियन क्वेश्चन है. इट्स नॉट वेरी $1 ट्रिलियन हो गया होगा अब तक तो. जी, क्योंकि अगर आप देखें तो सी कैप ले लें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले लें, देयर आर tons of research going on why some country adopt something while the neighboring country resist it, right? So Kenya stands out while the neighboring countries are not really sort of that at that pace of maturity in that digital area. तो ये जो चीजें हैं इसका ताल्लुक हमारे कई दफा कल्चर से भी होता है और हमारे लेन देन के मामला से होता है. सो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो दो चीजें अलग अलग हैं. एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है. जब तक फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगी तब तक आपकी इकोनॉमी डिजिटाइज नहीं होगी. अगर मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो फिर तो मैं कैश ही पे करूंगा,
ठीक है, एंड दैट्स इट, राइट? इसमें तो कोई चीज नहीं है। तो आपकी जो पहला जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की क्या रीजंस हैं? वो रीजंस तो है, कुछ तो अंडरस्टूड रीजंस हैं कि पीपल डू नॉट फाइंड इनफ इंसेंटिव या रीजन टू पुट मनी इनटू अ बैंक अकाउंट। वो कहते हैं बस कैश है तो कैश काफी है, आई कैन बाय एनीथिंग, व्हाट इज स्टॉपिंग मी? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई इंसेंटिव होता है, ठीक है, या डिसइंसेंटिव होता है। सो या तो कुछ करने का डिसइंसेंटिव हो और कुछ करने का इंसेंटिव हो। तो अगर इसमें से कोई भी चीज ट्रू नहीं है, सो यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपके दिन, आज के दिन अगर आप कैश से कोई चीज नहीं कर पाएंगे, देन यू विल थिंक अबाउट एन ऑल्टरनेट, या कैश विल बिकम एक्सपेंसिव, देन यू विल थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट। ठीक है, तो ना तो आज के दिन कैश एक्सपेंसिव है और ना ही आज के दिन कैश कहीं एक्सेप्ट नहीं होता, हर जगह कैश एक्सेप्ट होता है। तो मुझे ये बताएं कि लोग अकाउंट क्यों खोलेंगे? कैश इज अनट्रेसेबल, ठीक है, सो यू डू नॉट नो कि किसने किसको दिया, कितना दिया। मगर एक और चीज, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि अनट्रेसेबल के अलावा अब हमने कोविड में देखा है कि इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एज वेल, एंड दैट आई मीन contactless deliveries was one of the like core solutions to during जी the जी, इस COVID पे lockdown. अभी इस पे आते हैं। देखिए, एक तो एक ओवरऑल एक हमारी ना कल्चरल एफिनिटी या लव फॉर पेपर, कैश की जो मोहब्बत है वो अलग है ना, इट इज मिसमैच्ड, इट इज अनमैच्ड। तो देखिए, बात ये है कि कैश में या तो आपकी कैश ट्रांजैक्शंस को रिलेटिवली महंगा होना पड़ेगा। तो अगर आप देखते हैं तो आपके मुल्क में जो डिजिटल एडॉप्शन है पेमेंट्स की, वो सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूजर्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि द टर्म इज क्रेडिट, सो यू गेट अप टू 40 days ऑफ क्रेडिट इन योर पेमेंट्स। तो यू कैन एक्चुअली सॉर्ट ऑफ, आपकी सैलरी नहीं आई हुई लेकिन आपके पास एक फ्री क्रेडिट है, आपने चीज परचेज कर ली, वंस द सैलरी गेट्स इन द बैंक अकाउंट, आपने पेमेंट कर देंगे। उसको आप रोल ओवर भी कर सकते हैं, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस नहीं करनी है आपकी। अच्छा, चैलेंज क्या है कि टोटल पाकिस्तान में जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो हार्डली कोई 12 से 15 लाख क्रेडिट कार्ड्स हैं, और उसके अंदर भी अगर यूनिक, शायद यूनिक होंगे मेरे ख्याल में 8 से 10 लाख एट द बेस्ट। सो 10 लाख इन अ पॉपुलेशन या 1 million इन अ पॉपुलेशन ऑफ 220 million इज अ कंप्लीट मिसमैच। तो जब तक ये डिजिटल पेमेंट्स की कॉस्ट को कम नहीं किया जाएगा, मर्चेंट्स के लिए भी और बायर के लिए भी, एडॉप्शन विल नॉट टेक प्लेस। आप अकाउंट इसलिए खोलते हैं क्योंकि आपको उस पैसे से कुछ करना होता है। यू डोंट वांट टू जस्ट ओपन एन अकाउंट बिकॉज यू वांट टू ओपन एन अकाउंट, राइट? You want to open an account because there's a value that you can derive out of it. तो या तो आपके पास अच्छा रिटर्न आ रहा हो, या आपके पास इंश्योरेंस आपको मिल रही हो, और अब इन पे काम शुरू हुआ है क्योंकि बैंक्स की वो आउटरीच नहीं है कि वो 6-6 हज़ार रुपए वाले लोगों का बैंक अकाउंट खोलें। तो इसी के लिए हमारे पास अब डिजिटल वॉलेट्स आ रहे हैं। डिजिटल वॉलेट में ये देखा गया कि जब तक आप इनको कोई सेविंग अकाउंट नहीं देंगे, जब तक इनको आप इंश्योरेंस नहीं देंगे, तो वो वॉलेट को यूज ही नहीं करते। अब लोग वहां पर जाना शुरू हुए हैं। लेकिन ऑल इन ऑल पेंडेमिक में लोगों को एक थोड़ी सी जरा सा वो था कि हमें करना चाहिए, लेकिन जो चीज कंटिन्यू करेगी ना वो है कि आपने किसी तरह से डिजिटल कॉमर्स की कॉस्ट को कैश से कम करना है और विजिबली कम करना है। अगर मर्चेंट ज्यादा टैक्स पे कर रहा है फॉर डिजिटल कॉमर्स, और जो पेयर है वो रिलेटिवली ज्यादा पैसे दे रहा है, तो ये इसका अपटेक नहीं होगा। देयर बी सर्टेन पोर्शन होगा जो उसको करता रहेगा, इट विल नॉट गो। तो पंजाब ने बड़ा जबरदस्त काम जो किया है, दे हैव डिसाइडेड टू reduce the tax rate to 5% GST का for the payments through cards. आपने I think मेंशन किया तो आई रियली लाइक इट। मैं कल पहली दफा लॉकडाउन के बाद खाने पे बाहर गया हूँ। जब मैंने बिल दिया, जो बिल एक्चुअल आया था वो उन्होंने 16% पे कैलकुलेट किया हुआ था। जब एक्चुअल बिल आया तो वो कम पैसे हो गए थे, और मैंने किसी को डिस्काउंट के लिए नहीं कहा था, बट इट वाज बिकॉज आई पेड यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, तो 5% पे आ गया होता। तो बड़ी तसल्ली हुई, दिल को खुशी अब हुई। आप देखें ये चीज जिसको पता चलेगा उसके लिए 11% कॉस्ट कम हो गई है, विच इज नॉट अ हिट ऑन द मर्चेंट। ये मर्चेंट ने डिस्काउंट नहीं दिया, ये गवर्नमेंट ने थ्रू अ पॉलिसी डिस्काउंट दिया, जस्ट कहते हैं कि रिवॉर्ड द कल्चर दैट यू वांट टू प्रमोट। तो कॉस्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन कम करनी पड़ेगी ताकि जो है एडॉप्शन हो सके। इसका कोई और हल नहीं है। प्राइवेट पार्टीज, देखिए प्राइवेट पार्टीज जितनी भी होंगी, दे विल हैव अ फाइनाइट मनी फॉर मार्केटिंग। वो अवेयरनेस फैलाएंगी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उनकी कैंपेन खत्म हो जाएगी। सो व्हाट विल कंटिन्यू इज अ प्रॉपर पॉलिसी। दिस आई थिंक ऑल। जब एक सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, हम सबको समझ आ रही है, नजर आ रहा है, तो
क्या what is stopping policymakers in that space to understand that and probably take appropriate actions इतनी देर में? अगर ये ज्यादा देखिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया तो फील फ्री टू से पास. नहीं इतना पॉलिटिकल नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग, इट्स ऑल पॉलिटिकल इन वन सेंस और द अनदर. देखिए, बट आप बोल हमारा टॉपिक भी है कैंडिडेट विद पाशा और आप पाशा चेयरमैन, इसलिए आई वांट अ वेरी कैंडिडेट. देखिए जी, बात ये है कि पंजाब बीइंग द लार्जेस्ट प्रोविंस हैज टेकन लीड हियर. ठीक है, तो इस साल कोविड की वजह से ऑलमोस्ट एवरी प्रोविंस एंड फेडरल टॉक्ड अबाउट डिजिटल पेमेंट्स. पंजाब हैज एक्चुअली इनेबल्ड समथिंग. तो मेरा ही ख्याल है कि वो जो होता है वो चीज उन्होंने तोड़ दी है. सो पीपल विल नाउ पॉसिबली अडॉप्ट इट एज वेल. जो बाकी जो प्रोविंसेस हैं और जो फेडरल है उन्हें करना पड़ेगा. नहीं करेंगे तो देखिए हो ये रहा है कि आपकी जो 98% से ज्यादा ट्रांजैक्शन है वो डिजिटल पे हो ही नहीं रही. वो तो टैक्स आपको शायद मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा आपको. सो यू हैव टू रियली क्रिएट दैट कल्चर वेयर ट्रांजैक्शंस आर डिजिटल, सो यू अर्न टैक्स व्हाटएवर द टैक्स इज. 5% tax on for example 100 billion versus 16% tax on 10 billion. The answer is very easy to gauge. सॉरी जी, बहुत शुक्रिया शहजाद, थैंक यू सो मच. आयशा, मैं आपके पास आने से पहले एक दो सॉरी क्विक हाउस रूल्स पे बात कर लूं. सबसे पहले जी, ये जस्ट फॉर ऑल ऑफ आवर इंट्रोडक्शन, जो कैंडिडेट विद पाशा इनिशिएटिव है, दिस इज बीइंग लेड बाय one of our CEC members, Shamim Rejani from Karachi. She runs a company called Genetech. If I'm not wrong, मैंने अगर सही स्पेल किया है. So just wanted to appreciate कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारा चल रहा है पाशा का, जिसमें हम बिल्कुल करंट कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर कैंडिड कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, जिससे हम आज कर रहे हैं. सो एक वंस अगेन आप सबका आने का शुक्रिया, हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया एज पैनलिस्ट. दूसरा, बिहाइंड द सीन्स जो आप ये छोटा सा वाइट कैंडिडेट विद पाशा देख रहे हैं, इसके पीछे जिन लोगों का काम है उसमें तला और नोमान, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बैक एंड पे सारा बिहाइंड द सीन्स कोऑर्डिनेट किया, सारी प्रमोशन सारा कुछ आप देखते हैं. सो अप्रिशिएट द टीम के जो इसको लेके चल रही है. और तला एंड नोमान विल बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस. जो अगर कोई फेसबुक पे कमेंट्स या थॉट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ वो आप हमसे यहाँ चैट विंडो में शेयर कर लें, ताकि हम उसी अप्रोप्रिएटली में वो चीज़ टू द राइट पैनलिस्ट आई शूट देम अकॉर्डिंगली. और ये हम सबके आंसर्स देने के लिए भी और थॉट्स लेने के लिए उससे शेयर कर सकते हैं. तो आयशा, थोड़ा सा आप क्रॉस बॉर्डर पे और अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे अगर शेयर कर सकें कि हम ई कॉमर्स में how important is exports and cross border e-commerce, आपने especially from your WTO perspective as well, कि how did you feel कि ये e-commerce की policy कितनी necessary और कैसे ये direction को realign करेगी कि हमने इसको किस तरफ लेकर चलना है. तो would love to have your thoughts there. जी थैंक यू बदर. ये एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ई कॉमर्स जो है ये इट्स बेसिकली हमारी सर्विसेज की ट्रेड की बात है इसमें. क्योंकि जब हम क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स की बात करते हैं तो जो हमारा मोड 1 में जो जितनी भी हमारी ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी ई कॉमर्स में फॉल करती हैं. इसी तरीके से जो मोड 2 में टूरिज्म में अगर कोई ऑनलाइन बुकिंग होती है या आप कंजम्पशन किसी दूसरे मुल्क में जाके करते हैं तो दैट इज़ अगेन आप कार्ड पे पैसा खर्च कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके किसी होटल में ठहरे हैं, आपने कोई रिजॉर्ट बुक कराया है, तो दैट इज़ ऑल वो सर्विसेज एक्सपोर्ट भी है एंड ई कॉमर्स भी है. तो और सर्विसेज एक्सपोर्ट आप देखें कि इस वक्त उसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आया है. 1970 में it was 9% of the global trade, and now it is more than 20% of global trade. Or by 2040 it will be 1/3 of global trade. और इसमें obviously e-commerce के लिए ही सारी opportunities हैं. और इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनका शेयर बड़ी तेज़ी से इंक्रीज आ रहा है उसमें. और अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 5-7 साल में 10% ग्रोथ रेट है इन द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 25% इन द एक्सपोर्ट्स एंड 34% इन द इंपोर्ट्स. तो ये एक ऐसा फ्यूचर की ग्रोथ का एरिया है कि और इसमें जो 4 बड़े फैक्टर्स हैं ना जिन्होंने कि
ई कॉमर्स को और सर्विसेज ट्रेड को अफेक्ट करना है, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की अडॉप्शन है। उसके बाद जो है डेमोग्राफिक चेंज है, उसके बाद पर कैपिटा इनकम इंक्रीज है, एंड थर्ड इज क्लाइमेट चेंज। तो ये जो दुनिया में मुख्तलिफ स्टडीज हो रही हैं, उनकी ये फोरकास्ट है कि दीज आर द 4 थिंग्स विच आर गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस। और इसमें आप देखें ये जो अडॉप्शन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज है, आई थिंक ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज में देखें हम बड़ी आइडियली सूटेड हैं। हमारी अराउंड 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 30। तो हमारा और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज वाले भी हम उस ब्रैकेट में हैं कि जहाँ पे डेवलपिंग जो आपका है ना मिडिल क्लास, वो डेवलप हो रही है, और Correct. इसने इंक्रीज करना है, क्योंकि अभी ग्रोथ की पोटेंशियल है। आप देखें ना, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज की तो ग्रोथ 1% बहुत ज्यादा होती है, तो 1.5 या 2 हो जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज में तो 8-9% की हो रही है। पाकिस्तान की तो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस थे, टेररिज्म और वाटर शॉर्टेजेस रही, एनर्जी शॉर्टेजेस रही, जिसकी वजह से काफ़ी हमें स्वेयर प्रॉब्लम्स आए। तो हम जो अपने रीजन में ग्रोथ है वो नहीं की, लेकिन हम कैचअप कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये विद इन 2-3 ईयर्स ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो रहा है आपकी, और सारी एनर्जी नीड्स वगैरह एड्रेस हो रही हैं। तो विद इन 4-5 ईयर्स इंशाल्लाह हम भी उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चले जाएंगे। तो दिस इज द टाइम टू इंश्योर कि हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन है वो बहुत तेजी से हो। और दुनिया ने तो मोबाइल फोन जो है, दिस इज नाउ हैज बिकम अ टूल फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। सारे के सारे काम लोग जो है अपने एक मोबाइल फोन के जरिए कर रहे हैं। तो ये इसके लिए आई थिंक बड़ी तेजी से काम की हमें ज़रूरत है, कि जैसे हम फूड सिक्योरिटी के लिए हम इंश्योर करते हैं ना कि जी उसके एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और वो सारे ए जो हैं हैव टू बी लुक्ड एट। इसी तरह से हमें इंटरनेट एक्सेस और डिजिटल टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन पे भी यही देखना चाहिए कि जी एक्सेस, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर कराएं, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक हैविंग एक्सेस टू फूड फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल सही है। आई थिंक दैट्स वेरी लॉजिकल। थोड़ा सा ई कॉमर्स पॉलिसी का जो हाई लेवल एजेंडा है कि हमने पिलर्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं, अगर आप उस पर भी थोड़ा सा शेयर कर सकें विद आवर ऑडियंस। जी, इसमें देखिए 9 पिलर्स हैं, और इसमें हमने ये कोशिश की कि ई कॉमर्स पॉलिसी की जो वेरियस डायमेंशंस हैं वो सब कवर हो जाएं। जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट कनेक्टिविटी एक एरिया है जिसकी हमने बात की कि MOIT का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से अभी जैसे शहजाद बात कर रहे थे फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिजिटाइजेशन की, तो दैट इज़ अनदर पिलर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें हमने बड़ा एक्टिवली स्टेट बैंक के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कोई पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है वो स्टेट बैंक is also very proactively engaged, or they try to reform those areas. इसी तरह से हमने एक फैसिलिटेशन पे फोकस करके जो हमारा पहला पिलर है, जिसमें हमने ये बात की है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करना है FBR के साथ कोलैबोरेट करके। और जैसे अभी ये थोड़ा इन्होंने बात की G2C की भी ना, कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसमें कंज्यूमर बहुत सारा प्रोग्रेस तो उसमें बहुत हुई है। आई थिंक ऑनलाइन में देखें आपकी बिल्स वगैरह की पेमेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं, प्रॉबेबली उस लिहाज से तो उसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन जो आपकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म है वो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसमें मजीद गुंजाइश की ज़रूरत है। तो एक ये फैसिलिटेशन पे फोकस है हमारा। उसके बाद आपका IT हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, फिर एक हमने ये SMEs, यूथ और विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात की एक पिलर में, जिसमें कि फोकस इसी चीज़ पे रखा है कि ये जो यूथ और विमेन एंटरप्रेन्योर का पोटेंशियल है ये अनलीश हो सके। उसके लिए वेरियस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स बनाने की ज़रूरत है। और हम एक उसमें विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का अलग से कंसल्टेटिव ग्रुप जो है वो भी फॉर्मुलेट किया है, उसके TORs वगैरह इन द प्रोसेस हैं, ताकि जो लीडिंग बिजनेस वुमेन हैं इन IT सेक्टर, इन ई-कॉमर्स और दूसरे बिजनेसेस में, जो हेल्प करें विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कि वो आगे आएँ और अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेकर जाएं। इसी तरह लॉजिस्टिक्स जो है, दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, जिसमें कि हम प्राइवेट सेक्टर और पाक पोस्ट के साथ काम कर रहे हैं।
फिर इंटरनेशनल ग्लोबल कनेक्टिविटी के हवाले से एक पिलर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर बाकायदा पूरा एक पिलर है। तो वी हैव ट्राइड के ऑल 9 एरियाज ऑफ द पॉलिसी आर कवर्ड, और उसमें ये पॉलिसी इज नॉट कास्ट इन स्टोन। इसमें नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल है which is chaired by the advisor to the Prime Minister for Commerce, Razak Daud साहब, और प्राइवेट सेक्टर अपना इनपुट देता है। देयर इज ऑलवेज पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पॉलिसी, और इसमें कोई भी अगर कोई नई चीज़ आती है, हमें लगता है कि जी इस पॉलिसी आउटकम को मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एक्शन मैट्रिक्स उसके साथ हमने लगाई हुई है, उसमें अगर कोई मज़ीद कोई एरिया ऐड करने की ज़रूरत है तो वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, थैंक यू आयशा। मैं अनुशे एग्जैक्टली बिल्डिंग ऑन व्हाट आयशा जस्ट सेड, सिंस आई एम पार्ट ऑफ द नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल, सो आई कैन टेल यू कि हमने आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस के जैसे आयशा ने मेंशन किया कि उनका पाशा के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, एंड स्पेशली माई सेल्फ वर्किंग, हैविंग हैड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियसली, तो आई कैन टेल यू कि मेरा एक्सपीरियंस एंड एज पाशा हमारा एक्सपीरियंस भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है in terms of a very cordial public-private partnership in terms of taking it and और जो कोर्स करेक्शन कहीं भी करने की हमें जरूरत रही है और उसको सही कोर्स पे लाने के लिए टू द पॉलिसी, और फिर उसका कैसे हमने एंगेजमेंट की, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड एज वेल, हाउ वी एंगेज द स्टेक होल्डर्स, रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। हमने लॉकडाउन एसओपीज के लिए काम किया, स्टेट बैंक के साथ जिस तरह बता रही हैं आयशा, हमने बहुत सारा किया। तो अभी जो आप पहले कुछ जिक्र कर रही थी कि हमारे कुछ चीज़ों की अगर आपको उसमें मिसिंग लग रहे हैं आपको करंट पॉलिसी में, तो वी आर वेरी ओपन कि हमें प्राइवेट सेक्टर से बाकी लोग भी इसी तरह फीडबैक देते रहें, और हम उसको अगर हमें वो एक प्रॉपर वाइट पेपर फॉर्मेट में मिलता रहे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम उसकी ड्यू डिलिजेंस करके हम उसको इस पॉलिसी फ्रेमवर्क में एम्बेड करते रहें, बिकॉज ई कॉमर्स इवॉल्विंग बहुत है, टेक्नोलॉजीज भी चेंज करेंगी, बिजनेस मॉडल्स भी नए आते रहेंगे। तो एक तो हमें आपका उस पर जो आपने पहले बात की थी, हमें उस पर आपका फीडबैक चाहिए होगा पॉजिटिवली, ताकि हम वो इसमें रेकमेंड कर सकें। Is this As going Pasha. to be remunerated या ये national interest में ये करना हम सब पड़ेगा? नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं इस वक्त। शहजाद तो वैसे माशाल्लाह जो जितनी नोट बांटने वाली मशीनें, एटीएम्स, उन सब के सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसके बावजूद वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम वॉलंटियरिंग। मैं भी एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर आई आल्सो ट्राई टू इन्वेस्ट विद द इंटेंट कि हम मोनेटाइज कर पाएंगे। ऑफ कोर्स वी आर ऑल कमर्शियल एंटिटीज विद द इंटेंट, एक्सेप्ट आयशा, हम सबका इंटरेस्ट है कि हम इवेंचुअली पाई साइज बड़ा होगा तो हम सब भी उसमें हमारा शेयर भी बड़ा हो जाएगा। सो दैट्स द इंटेंट। और अगर एक वो इंटेंट है, और दूसरा इंटेंट ये कि अगर हम अपने काम के साथ आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर पाएंगे तो इट विल हेल्प द कमिंग नेक्स्ट जनरेशंस ऑफ द कंट्री एंड इवेंचुअली हेल्प द इकोनॉमिक सिचुएशन, नॉट फॉर अस बट आने वाले हम सबके लिए फायदा होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो just to sort of just to add to this, क्योंकि I didn't think both the other panelists mentioned this, और मेरा नहीं ख्याल था that this was actually a big problem. Adoption के हवाले से दोनों panelists ने बात की थी कि adoption क्यों नहीं हो रही है, क्यों तेजी से नहीं हो रही है, what can be the reasons, जैसे you asked earlier. तो उसमें भी मैं यही एक चीज मैंने ऐड करनी थी कि even when I was doing my research, I was not able to find a single research paper on e-commerce adoption in Pakistan in the last 3 to 5 years. हो सकता है 90s में या 2000s में किसी ने लिखा हो e-commerce के बारे में generally, but जो adoption की जो there are actually academic theories जो कि मुझे लगता है कि उस पे बहुत काम होने वाला है, जो हमारे लोग रिसर्च भी कर रहे हैं in universities right now. Why are they not doing enough research on this area? अब जितनी भी कंट्रीज आप सही कह रही हैं, सब अलग अडॉप्शन थियरी फॉलो कर रही है, जो कि और यहाँ पे बिल्कुल इसमें एकेडमिक रिसर्च तो हुई ही नहीं है। So बिल्कुल इस पे मैं I'm just coming back to you on the council, consumer council बात, but इस पे just to add here, very interestingly आपने बात की हमारी एकेडेमिया में भी गैप है, क्योंकि हम अभी तक ट्रेडिशनल MBAs पे और ट्रेडिशनल डिग्रीज पे बहुत फोकस कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली इस तरह से भी एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज जहाँ मैं एक नई डिग्री क्यूरेट कर रहा हूँ ताकि हम ये वाले जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके ऊपर R&D वाला काम भी ला सकें। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आयशा भी जो लीड कर रही है एक चीज, देयर कमिंग अप विद द ई-कॉमर्स सेल विद इन द मिनिस्ट्री।
और इसी तरह पाशा ने भी जो हमने ई कॉमर्स कमेटी बनाई वो भी बिल्कुल इसी विजन से थी। बट आई थिंक इट विल टेक अस सम टाइम कि हम इन सब चीज़ों को अलाइन करते हुए एकेडमिक रिसर्च वाले लेवल पर भी आए, बिकॉज अभी हमारे यहाँ मेजॉरिटी एकेडेमिया में या आईटी ग्रेजुएट्स हैं या बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं। सो ई कॉमर्स इज क्रॉस बिटवीन बोथ। तो जब तक ये दोनों डिसिप्लिन इकट्ठे नहीं बैठेंगे और इकट्ठे नहीं सोचेंगे कि कैसे कॉमर्स में, जिस तरह आयशा ने बात की, कॉमर्स को आईसीटी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं और इम्प्रूव करती हैं या उसमें कैटलिस्ट का रोल प्ले करती हैं, जब तक ये दोनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे वो वाली रिसर्चेस नहीं होंगी जो आपने बात की कि हम कैसे अडॉप्शन लाएंगे या वैल्यू एडिशन होगी इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी लाइक ई कॉमर्स। तो यस, दीज आर गैप्स एंड आई थिंक हम सब जानते हैं और ये सब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। सो अगर आज हमारे ऑडियंस में कोई एकेडेमिया से लोग हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रेडिशनल चीजों से निकल के थोड़ा सा इस तरफ की रिसर्च की तरफ भी आए। So coming back to your specific focus from a legal perspective, थोड़ा सा हमें कंज्यूमर काउंसिल्स के बारे में बताइएगा कि वो कंज्यूमर कोर्ट्स, कंज्यूमर काउंसिल्स और हाउ इज ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर्ड, और एक आम आदमी जिसने ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस किया, लेमैन, वो उसका बेस्ट रिजॉर्ट क्या है कि वो where should he or she go जब वो उसको कोई मर्चेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या उसके साथ उसका डिस्प्यूट डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं हो गया। तो सिंपल B2C केस में, इन अ वेरी सिंपल B2C केस सिनेरियो, बिजनेस टू कंज्यूमर सिनेरियो, तो कंज्यूमर की इल्तिजा कहाँ जाएगी? कंज्यूमर काउंसिल में जाएगी या कंज्यूमर कोर्ट में जाएगी या कोई इसको थर्ड पार्टी लॉयर हायर करना पड़ेगा? व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड और व्हाट आर द ऑप्शंस? जो कंज्यूमर काउंसिल्स ई कॉमर्स पॉलिसी में मेंशन है वो तो दे स्टिल टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग देम, और अगर जो भी एग्जिस्टिंग अगर हमारी कुछ बॉडीज हैं, आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद देयर हायरार्की or the kind of work that they do, but I think they're more research oriented rather than actually hearing cases या इस तरह। जो हमारी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, they on the other hand are doing extremely well. ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को आई डोंट नो क्यों नहीं लोग यूज करते। दे स्टिल थिंक इट्स ऑब्वियसली इफ यू टेल समवन टू गो टू द यू नो अपनी ग्रीवेंसेस के लिए। सो अगर मैं सॉरी आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, सॉरी आपको रिक्वेस्ट कर सकती, अगर आप एक यूज केस एक्सप्लेन कर सकें कि अगर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में डिसग्रंटल्ड हूं, डिससैटिस्फाइड कस्टमर हूं, एक मर्चेंट हूं, मर्चेंट का, तो हाउ डू आई गो टू अ कंज्यूमर कोर्ट? व्हाट वुड बी अ प्रोसेस? कोई डिजिटल वे है कि मैं उन कोर्ट्स में कंप्लेंट शुरू कर सकूं, इनिशिएट? जी, तो अगर ट्रेडिशनल कॉमर्स की से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें यही होता है कि इफ यू हैव अ ग्रीवेंस, लेट्स से मेरे पर्सनल केस थे, आई हैड अ पर्सनल केस, मेरे काफी सारे चलते रहते हैं सो इसीलिए सारे लॉयर्स से डरते हैं, बट एनीवे जी। So let's say I got a faulty piece of furniture and अब consumer laws जो हैं सब provinces में different हैं. So Punjab is doing extremely well as far as consumer cases are concerned. इसके लिए आपको lawyer भी hire करने की जरूरत नहीं होती, आप handwritten complaint लिख के in chronological order court में present कर सकते हैं। And सिर्फ ये है कि इसमें notices और deadlines का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। So अगर मैंने जैसे like I said, if I bought something that's faulty और वो जिस दिन मुझे डिलीवर हुई है वहां से फिर मेरे पास 14 दिन का टाइम होगा under the law to file a complaint with the court, और फिर कोर्ट जो है notices issue करेगी to the seller or whoever, और उनको फिर further 14 दिन का टाइम दिया जाएगा to respond। तो उस एक महीने के अंदर अंदर फिर then after that I can file a proper case चला सकते हैं फिर कोर्ट में। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती है ई कॉमर्स में, वो ये है कि अक्सर वेबसाइट्स पे यू डोंट नो हु द सेलर इज। मैं एक्चुअली सिर्फ आ रहा था, जी मैं आपको कहने लगा था ये एक सिनेरियो सोशल कॉमर्स का है, लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं। इन दैट केस सेलर की पूरी आइडेंटिटी कई दफा जरूरी नहीं है कि वो पब्लिक हो या क्लियर हो या वो लीगली कहीं रजिस्टर्ड हो पाकिस्तान के अंदर। तो उस केस में भी एग्जैक्टली प्लीज, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग, तो वो भी प्लीज अगर आप क्लैरिफाई कर दें। जी, उसमें ये है कि आई कैन या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इवन पाकिस्तान के जो डोमेन्स अगर कोई रेगुलेट कर रहा है, दे कैन ऑब्वियसली सी हु हैज रजिस्टर्ड दिस particular business or website, और यहाँ अगर कोई fraud हुआ है आपके साथ, let's say the seller has blocked you and run off or whatever, so then the FIA can also look at them, trace them. जो consumer court है पंजाब especially,
वहाँ पे जो bailiffs हैं, they also act as investigators. So if somebody is not found, तो वो भी at the court's expense वो जाके तो ये you know, they try to find who that person is, कि किधर से आया है, क्या हुआ है. They don't charge you, but हम obviously when we go to these courts, और मेरे केस में भी जिस तरह था, so my colleague was handling my case, और उसने ये कहा था कि ये बेचारा किधर जाएगा, you know, just pay him something, he's doing all this research for you. So इस तरह के consumer court is meant to facilitate the consumer basically, or they do tend to go out of their way to do that. तो e-commerce में फिर यही है कि you know उसकी identity trace करने के लिए इस तरह की you know the organizations can work together. फिर ये है कि if they're not responding to the notices, तो फिर आप ex parte भी जाके decision ले सकते हैं कोर्ट से कि ये तो आ ही नहीं रहा, तो आप you know you can rule in my favor then. तो वो ये है कि enforcement हो सकता है कि ना हो, लेकिन आपको कोर्ट से जजमेंट मिल जाएगी आपके फेवर में. उसकी enforcement किस तरह करानी है, पुलिस से करानी है या कोई पैसे वापस लेने हैं बैंक से करानी है, तो वो then you can take that decree, the judgment that the court has given you, and then show it to the banks or enforcement agencies कि देखें आ गई है और ये बंदा नहीं मिल रहा, so you should facilitate me then. So basically enforcement is और a separate thing, but पहले judgment लेना अपने हक जी. में या उसकी clarity लेना वो हम consumer court से लेते हैं, और वो आपने जी. बताया कि total 30-day process है जिसके अंदर वो notifications कंप्लेंट आ करके सकती है, उसके बाद फिर आप पहली हेयरिंग होती है, उसके बाद you know they can always say कि you know next hearing के लिए they can give you a further 2 weeks period. इसी तरह वो I mean बहुत ज्यादा खराब but नहीं generally करते कितनी देर में एक केस रिजॉल्व हो जाता है on average? Generally I would say around 3 months इस तरह. It depends on आपने कब की डेट लेनी है. ठीक है But it's not a difficult process. Can I also add little bit? जी जी बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आप सब ओपनली ऐड कर सकते हैं. इसके ऊपर ना एक्चुअली हमें PMDU से काफी कंप्लेंट्स आती थी कंज्यूमर्स की, तो देन वी अप्रोच कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स. मैं आपको बता रही हूँ जो पंजाब ने मुझे इस पे रिप्लाई दिया ना, उन्होंने कहा कि जी कंज्यूमर कैन इशू अ 15 days लीगल नोटिस अंडर सेक्शन 28 ऑफ द पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 टू ऑनलाइन मार्केटप्लेस as well as the courier service if the company's address is not disclosed by the courier company, and if the dispute is not resolved through the alternate dispute resolution mechanism, consumer courts can take legal action where disputes are resolved maximum within 6 months. उन्होंने कहा कि हमारे 94% disputes जो हैं are resolved by consumer courts, और मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 months है, यूजुअली इससे लेस नहीं हो जाते हैं. और जो काउंसिल है ना वो 15 days के लीगल नोटिस दे इस सेक्शन 28 के तहत, और वो कोरियर कंपनी से भी पैसे क्लेम कर सकती है. और उन्होंने एग्जांपल्स बताई कि किस तरह गलत चीज मिलने पे जिसपे के सेलर ने अपना एड्रेस नहीं लिखा हुआ था और कोरियर ने भी नहीं बता रहा था, तो वो कोरियर ने फिर पैसे दिए उनको. हाँ जी, ये in case of physical products तो courier को there's a compulsion that they have to have the details of the seller as well. अब problem क्या आती है cross border trade में, वो ये है कि पाकिस्तान में इस तरह का law या mechanism नहीं है that allows re-export of products. अगर आपने कोई चीज export की है बाहर or somebody wants to send that back and ask for a refund or whatever, उसके लिए the Pakistani seller does not have adequate mechanisms against that. तो उसके लिए जो पॉलिसी में एक नेशनल सिंगल विंडो का जिक्र था और पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल का जिक्र है, that should I think be able to address these concerns. बेहतरीन जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया. मैं आ रहा था शहजाद आपकी तरफ ही, वो अनुषा ने छेड़ दिया इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे वाला पॉइंट, तो मैंने कहा कि आपकी तरफ ही आ जाऊं. थोड़ा सा अगर हमें आप उसके ऊपर भी और पेमेंट गेट प्लीज जो आप ऐड करना चाहते हैं प्लीज करें. देन आई विल शेयर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस ताकि हम उसके ऊपर भी दो चीजें हैं. प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा कोई भी जो डिस्प्यूट है, अगर वो डिस्प्यूट पे जो प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस डिजिटल नहीं है और उस प्रोसेस में आपको फाइल कर एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है, भले से हैंड रिटन हो या लॉयर से लिखवाएं, फिर उसको सबमिट करना है, फिर उसको पूरा आपको लेके चलना है. इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उन केसेस में होता है जिसमें जो वैल्यू ऑफ आइटम है वो सब्सटेंशियल हो. मतलब 3-4-5 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए की शायद चीज़ के लिए बहुत थोड़े से लोग होंगे who will go into that long painful process, right?
वो उल्टा ये हुआ कि It's they will the say कि जी consumer e-commerce process. जी, the consumer court process is not long and painful. वहाँ लोग 100 रुपए की चीज के लिए भी they can come and claim. यही बात है कि वो तो ईगो इश्यूज का मसला है ना, वो तो हम इसलिए आते होंगे वहां के प्रूव करना है कि हम सही हैं। नहीं, आपको पैसे मिलते हैं, you claim for damages. अब जब मैंने अपना केस किया था, मेरे मुंशी ने he just saw the process and how easy it was, और उसने अपने he got a faulty charger और उसने अपना साथ भी कंप्लेंट फाइल कर दी। अब 400-500 रुपए का चार्जर होगा, I think he filed a case for at least like 1 lakh rupees and he got around at least उसको 10-15 हजार शायद मिल गए थे। शहजाद हमें तो पता ही नहीं नहीं था। सही कह रही, मेरा इस पे व्यू थोड़ा सा, तो मेरा इस पे व्यू जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट का भी है और एक कॉमन यूजर का भी है। फ्रॉम द कोर्ट एंड कोर्ट केस वी हैव हम डर रहे होते हैं बंद क्या होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए जो है आई थिंक कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली बात तो ये है कि पॉलिसी की पर्सपेक्टिव से जो मर्चेंट्स मस्ट बी मेड रिस्पॉन्सिबल कि वो लोग जो हैं वो जो कंज्यूमर राइट्स हैं वो विजिबल तरीके से वो जो है प्रमोट करें एट द टाइम ऑफ चेकआउट। सो कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोई चीज़ आपसे परचेज की है तो उसकी मेरे पास एक ईमेल आती है उसके बाद, राइट, इन मोस्ट केसेस, या व्हाट्सएप या एसएमएस आता है या उस वेबसाइट पर नजर आता है। वहाँ पर मेरे पास पूरा मुझे अवेयरनेस मर्चेंट को देनी चाहिए कि व्हाट आर द राइट्स दैट द कंज्यूमर कैरीज इन केस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ताकि आपको वहां पर एक एनकरेजमेंट हो। तो आई थिंक अवेयरनेस इज वन बिग प्रॉब्लम और इसको हम थ्रू अ पॉलिसी मैनेज कर सकते हैं मर्चेंट्स को एनफोर्स करके। दूसरी बात ये कि जो आपने शुरू में आपने बात की थी ओटीआर की या ऑनलाइन आर्बिट्रेशन की, आई थिंक दैट इज अ वे टू गो वे यू कैन सिंपली, आपके पास कोई पोर्टल बना हुआ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट राइट के, क्योंकि आप एक सॉर्ट ऑफ मिलेनियल जनरेशन के आदमी हैं, आपके पास मोबाइल भी है, यू शुड हैव अ सिंपल मोबाइल ऐप या कोई पोर्टल हो, पोर्टल पे जाएं, वहाँ तस्वीर खींचें और जाके आप पोस्ट कर दें और ऑटोमेटिकली जो है वो केस प्रोसेस हो जाए। वो केस फिर 4 महीना भी ले, इट विल बी एक्सेप्टेबल बाय द बायर। लेकिन अगर उसको अगर उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट जाके प्रोसेस कराना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आउट ऑफ 100 शायद 99 लोग उसको परसू ना करें इस केस को, एंड दे से कि यार ये कैश ऑन डिलीवरी बेहतर है, पहले मैं सामान देख लूं फिर मैं पैसे दूंगा। तो दिस डिजिटल पेमेंट्स विल बेसिकली नेवर टेक अप, और शायद हमारी जो ई कॉमर्स भी इसमें काफी चैलेंज रहेगा। जब अभी एक और आपने बात की थी, सो वन जो आपने शुरू में बात की थी अली बाबा के सिलसिले में, सो one technology and operation solution is to bring an escrow service. So the payment gateway or a middle party should become an escrow where they hold the money till such time the customer confirms that the item they have received conforms to the specifications that were mentioned, और उसके बाद जैसे वो confirm करेंगे तो the payment will actually go to the merchant. ये भी मेरे ख्याल में this is in the process. Hopefully 2021 will see an escrow service in Pakistan. तो वहां पर आके शायद बहुत सारे डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाएंगे बिकॉज बोथ विल बी कॉग्निजेंट, और द बायर विल आल्सो प्रेफर पेमेंट प्रीपे करना चाहेगा डिजिटल से, ताकि वो सब चीजों को बेनिफिट ले सके। अभी जो अपने लास्ट आपने बात की थी आईपीजी की, उसके ऊपर भी हमारी काफी डिस्कशंस रहती है। तो आईपीजी बाय डिफॉल्ट इज इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, राइट, so which means when you have to support the sale of your items to a foreign buyer, then you need an IPG, ताकि आप उन पेमेंट मेथड्स को सपोर्ट कर सकें और उस पूरे आप लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान में इस वक्त जो है जो लोकल पेमेंट गेटवेज हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, और इंटरनेशनल पेमेंट्स या इंटरनेशनल बायर्स के लिए जो डिफरेंट पेमेंट गेटवेज हैं दे हैव कम फॉरवर्ड, और उन्होंने दे हैव स्टार्टेड टू एग्रीगेट द ग्लोबल पेमेंट मेथड। हमारे पास 2-3 बड़े जो पेमेंट मेथड जिसका सिलसिला डिस्कशन बार आता है, एक उनमें से पेपैल है, because a lot of people in the West prefer PayPal over any other mode of payment. तो अगर आप मर्चेंट की वेबसाइट पे PayPal एक्सेप्ट नहीं होता तो हो सकता है कि 1/3 या 1/2 of the buyer does not go ahead with the purchase. और इसी तरह से अगर हम बात करें एशिया की, तो अली पे जो है इट्स नाउ टेकिंग अप, तो अली पे और PayPal, तो लकीली जो लोकल पेमेंट गेटवेज हैं पाकिस्तान के अंदर अनाउंसमेंट हैव बीन मेड, तो मैं बोल सकता हूँ ये बात अब कि जो निफ्ट है विच इज स्टेट बैंक PSP, इट इज एग्रीगेटिंग द डिफरेंट पेमेंट मेथड जिसके अंदर पेपैल शामिल है। इसका मतलब ये है कि वो मर्चेंट्स जिनका पेमेंट गेटवे निफ्ट होगा
they can sell to a foreign buyer जो कि PayPal यूज करना चाह रहे हैं। इसी तरह से Easy पैसा का भी एक पेमेंट गेटवे है, and they are also working on aggregating the payment methods, including Alipay. So I think it's only a matter of 3 to 6 months when we will see, you know, कि international जो आपकी जो B2C exports है e-commerce की, that will inshallah become, you know, real. जी बदर। जी शहजाद, थैंक यू सो मच। बहुत केयरफुली वर्डेड आपके कमेंट्स से। 2021 आई एम श्योर आपको पता होगा क्या आ रहा है जो आपने हमें बताया नहीं है, एस्क्रो वाला, बट एनीवे मैं ज़्यादा नहीं टिक करूंगा उस तरफ। लेट मी गेट बैक टू फ्यू ऑफ द कमेंट्स, रिमार्क्स कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस। सबसे पहले जी हसन शाहिद साहब का है कि a lot of digital banking apps aren't in Urdu language. I think that's a very fair point. None of the mainstream banks do it, nor does the fintechs. This needs to be considered. So I think that's a good feedback कि हमें digital inclusion की, जब payments inclusion की बात करें तो I think हमें ये भी एक suggestion हमारा आना चाहिए action items में हमारे policy के, कि जो banking की apps हैं वो local language में होनी भी ज़रूरी होनी चाहिए। I think that's also interesting. इसके बाद निसार अहमद शेख साहब का एक पॉइंट है जी, one of the reasons people are avoiding digital transaction is the fear of getting robbed at the hands of spammers. So we are kind of paranoid. Secondly, we tend to pay offline is our fear of the quality of the product. तो दोनों चीज़ों में कंज्यूमर ट्रस्ट वाली बात ही हुई है कि ब्रांड एक्विटी वाली बात ही है। तो अगर एस्क्रो सर्विस आ जाती है, और अगर जैसे अनुषा आपने बात की कि अगर हमारी कोर्ट्स, और शहजाद जो आप हाईलाइट कर रहे थे, अगर कोर्ट्स का बाकी प्रोसेस ठीक है, बट कोर्ट कंज्यूमर से कोर्ट तक की जो एक्सेस है वो भी अगर हम डिजिटल कर लें, तो आई थिंक हम जो एक लास्ट माइल गैप है या चैलेंज है, करेक्ट, ई कोर्ट्स वाला, वो हमने इसमें प्रपोजल में, ई कॉमर्स पॉलिसी में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने इसमें ऐसी बात की हुई है। सो अगर हम उसको एम्बेड कर लें तो वी कैन ऑल्सो एड्रेस दैट पार्ट। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा फीडबैक है, एंड आई थिंक थैंक यू निसार, हम एग्जैक्टली इसी पे बात कर रहे थे। असद वड़ाइद साहब का एक हमारा पॉइंट आया जी के how do you see the credibility of e-commerce in Pakistan, the models and the ethics of business? How can one ensure true implementation, especially worst experience in some cases of online shopping? I think सारी हमारी consumer protection और merchant protection वाला angle ही है. So I think if we are able to solve that, तो हम बहुत सारा trust deficit कम कर पाएंगे। तो उसकी वजह से हमारी e-commerce की इंडस्ट्री और बेहतर हो जाएगी। I think we need to focus on that part as well. तो right after pillar 2 आयशा, हम लोग इस वाले consumer protection वाली साइड पे we should focus heavily on getting the action items aligned properly. I think that's important. That's interesting. बरकान सईद साहब हमारे एक्स चेयरमैन भी हैं पाशा के इस्लामाबाद से, उनका एक पॉइंट है जी कि गुड वर्क बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑल्सो कंसिडर अ डॉलर वॉलेट एंड अ पेमेंट गेटवे। सो आई थिंक डॉलर वॉलेट का भी एक, आई थिंक इस पे भी शाहिद शहजाद, आप जब हम बात करें पिलर 2 में पेमेंट्स वाली, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग वी शुड ऑल्सो कंसिडर कि अगर हम जो एक तो लोकल करेंसी है, बट अगर हम इंटरनेशनल करेंसी वॉलेट के ऊपर भी बात करें, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग, ताकि जो हमने इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं या कुछ हैं वो अगर हम वहाँ से रीइंबर्स कर सकें तो वुड बी इंटरेस्टिंग। तो उनको आई थिंक दैट्स आल्सो गुड आइडिया। यासिर हुसैन साहब का एक पॉइंट आया है, a lot of problem with e-commerce in Pakistan are infrastructure, lack of digital payment systems. जी आई थिंक इसकी तरफ, बल्कि शहजाद अगर आप क्विकली ब्रीफ करना चाहें कि जो रिसेंट कुछ पेमेंट फिनटेक्स में जो इनोवेशंस आ रही हैं, 2-3 डिफरेंट, जिस तरह मुझे उससे नहीं पता था, जो मुझे 2 नए लोकल पेमेंट गेटवेज पता चले फॉर कलेक्टिंग पेमेंट्स। अगर मैं एक छोटा स्कूल हूँ, अगर मैं एक छोटा वेंडर हूँ और मैंने अपनी इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट्स कलेक्ट करनी है, और मेरे कंज्यूमर्स के पास कार्ड नहीं है, ना प्लास्टिक मनी नहीं है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है, बट बैंक अकाउंट है, तो मुझे वो ट्रांसफर कर सकें, बट मैं ट्रैक कर सकूं अगेंस्ट माई इनवॉइस नंबर या जो मैंने इशू किया हुआ, तो मुझे वो उस दिन 2 अच्छे पेमेंट गेटवेज का पता चला जो पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई और पेमेंट गेटवेज या नई अगर आप क्विकली शेयर कर सकें, तो यासिर हुसैन साहब का स्पेसिफिक क्वेश्चन था। देखिए 2-3 इस वक्त काम हो रहे हैं। एक तो हमारा जो डिपेंडेंसी है ऑन वीज़ा मास्टर कार्ड, वो बाय इटसेल्फ इज अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि सबके पास वो कार्ड्स हैं नहीं। इसीलिए अब ये कुछ पेमेंट गेटवेज जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है या डिजिटल वॉलेट है, उससे आप डायरेक्टली ई कॉमर्स कर सकें। सो उसका जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता, गवर्नमेंट जो है उस पर आप वेरिएबल फी चार्ज नहीं कर सकते, बट
Shaz- जिसके अंदर B2B e-commerce is now being enabled, जिसके अंदर भी कुछ fintechs काम कर रहे हैं. Sorry, I think Sorry, मेरी भी was I- connectivity नहीं I think हम सबकी connectivity का issue आया था और मेरे लिए भी कुछ सेकंड के लिए I lost you. Sorry, please go ahead. No problem. तो मैं बदल में बता ही रहा था कि इसमें दो काम हो रहे हैं. एक तो इसमें जो कंज्यूमर वॉलेट्स हैं, डिजिटल वॉलेट्स हैं और अकाउंट्स हैं, दे आर बीइंग ओपन डायरेक्टली फॉर द ई-कॉमर्स परचेजेस. और दूसरी बात ये है कि जो सप्लाई चेन है और जो B2B ई-कॉमर्स है, उस पर भी कुछ फिनटेक्स काम कर रहे हैं. क्योंकि अभी तक हम बहुत ज़्यादा रिटेल फोकस्ड हैं, जबकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ई-कॉमर्स या परचेजेस बहुत ज़्यादा B2B के अंदर भी होती हैं. तो इन दोनों एरियाज पे भी काफ़ी काम इस वक्त हो रहा है. जो तीसरा काम हो रहा है वो एक जो है फिनटेक के थ्रू एक पेमेंट गेटवे पे काम हो रहा है, जो कि ज़्यादा इंक्लूसिव हो, ज़्यादा लोकल हो, विच बेसिकली प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर इंटरेस्ट. हम लोग बात कर रहे थे एस्क्रो सर्विसेज की, हम बात कर रहे थे एग्रीगेटिंग ऑफ पेमेंट मेथड्स की. इनमें काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अभी सर ज़्यादातर जो काम है अभी वो अंडर प्रोग्रेस है. तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल इस वक्त अवेलेबल नहीं है. लेकिन यस, बिल पेमेंट्स ले लें आप, जो है स्कूल फी पेमेंट है, मैंने जैसे कहा कि B2B इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स इन सब पे काफ़ी इस पर काम हो रहा है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच एक्चुअली आर इन द प्ले राइट नाउ. Okay, perfect. लेकिन Thank you कोई so much. एक चीज मैं जी, समझाना भी चाहूंगा कि जरूर. फिनटेक्स कंपेयर टू अदर एंटिटीज आर मच मोर डिफिकल्ट, क्योंकि इनको बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स देखने पड़ते हैं. बैंक्स बाय डिफॉल्ट आर वेरी कॉन्शियस. तो इसमें जो जेस्टेशन पीरियड होता है जनरली वो थोड़ा सा लंबा होता है. सो थोड़ा सा उसके हमें उसको सब्र करने की बिल्कुल ठीक जरूरत है. है. बट अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर नाउ सीइंग लाइट ऑफ द डे. एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच. आयशा, एक आपसे स्पेसिफिक कमेंट है सिकंदर बाजवा साहब का, और वो फ्रीलांसिंग की बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग इज ब्रिंगिंग इन मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो वो एक फिगर ऑफ कोर्स जो भी एग्जैक्ट होगी, बट उसकी कोई बॉडी और उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकें कि क्या हम इस पॉलिसी में फ्रीलांसर्स को जिस तरह हम कर रहे हैं एड्रेस, लॉट ऑफ पीपल हम मिस कर जाते हैं कि खाली ई कॉमर्स पॉलिसी नहीं है, इसमें फ्रीलांसर्स भी are an important part as well. इसीलिए यूथ और women की भी मीटिंग हुई थी इन जनवरी, तो उसमें ये बात सामने आई थी कि के लिए पाकिस्तान में पैसे लाने के लिए, बिकॉज वो उनके ऊपर फैटिफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके तहत दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पैसे कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, वो पूरे प्रोसेस की नॉलेज उनको चाहिए होती है. तो उसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स along with other private sector people went to the प्राइम मिनिस्टर और इस लिमिट को 5,000 से 25,000 करवाया गया, और उसको फिर अब वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है. स्टेट बैंक ने रेगुलेशंस भी बदल दिए हैं. इसके अलावा ये कि हमने पाशा से भी रिक्वेस्ट की हुई है कि अगर आप अपने दो और बॉडीज अलग से, जैसे एक तो आईटी के जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वो पाशा के मेंबर्स हैं, इसके साथ साथ अगर आप फिनटेक और फ्रीलांसर्स के लिए अलग से भी थोड़ा सा एक अपनी एसोसिएशन का एक कंपोनेंट बना ले, जिसमें कि आप फ्रीलांसर्स को मेंबर बनाएं ताकि उनके इश्यूज प्रॉपर्ली एड्रेस हो सकें. हमने फ्रीलांसर्स को ये भी कहा हुआ है कि जी अगर आप अपनी एसोसिएशन बनाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, आप डीजीटीओ के पास आके रजिस्टर करवा लें उसको. और एडवाइजर साहब ने बड़ी प्रोएक्टिवली यूथ को एंगेज करने के लिए एक स्टार्टअप्स के साथ डायलॉग की सीरीज शुरू की हुई है. तो एक उन्होंने पहले मीटिंग की थी, अ स्मॉल वन, बट नाउ ही जस्ट फ्यू डेज बैक उन्होंने काफी मैराथन सेशन किया जिसमें हमने एससीसीपी को भी एंगेज किया, स्टेट बैंक को भी एंगेज किया, और उसमें जो हमारे स्टार्टअप्स हैं और उसमें फ्रीलांसर्स को भी हम और एंगेज करेंगे कि वो भी उसमें शामिल हों, और उनके जो भी इश्यूज हैं उनको जो है वो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उनको एड्रेस करें. उनको अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम आती है और उनका केवाईसी मीट करने में, और फिर उनको अपने पैसे लाने के लिए समटाइम्स वो इकट्ठे करके
पूल करके आते हैं, तो फिर उसमें वो एक एक को दिखाना कि जी ये कहाँ से आए थे, किसके किधर से पेमेंट हुई है, और वो बल्क में आ रहे हैं, तो वो उसमें उनको जो है ना इन एंड आउट फ्लो ऑफ मनी, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। उसमें स्टेट बैंक इज वेरी एक्टिव और दे आर सपोर्टिंग इट। वो पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के तहत अभी जो है वो विंडो क्रिएट हुई है टू फैसिलिटेट देम, और मजीद फ्रीलांसर्स हमें बताएं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो मैं इस पे डाल देती हूँ अगर इसके उसमें चैट बॉक्स में, तो everyone is welcome to share their suggestions and recommendations to facilitate freelancers. बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। if I can just add to this, ये FATF की जो बात हो रही है, this is the FATF का, it's called the travel rule, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। So सिंगापुर ने recently इस पे I think law कोई पास की है या पॉलिसी बनाई है, that I think that would be good to look at. अनुषा, हम आपको एक ठीक I है। think we need to create a smaller group of legal specialists जो कि हमें policy और legal में ये वाली सारी चीजें जो आप best practices हैं from around the globe, we would love to know, ताकि हम उनसे भी inspire हो सकें और अपने हिसाब से उसको localize भी कर सकें उन solutions को। So I think that would be I noticed there's not a lot of, you're not talking about a lot of legal things within the policy. Well, I understand okay, from a technology point of view, myself included, you know, we're proponents of technology. We do not want over regulation, but जहाँ तक consumer protection की बात है, वहाँ पे I think जितनी भी regulation की जाए वो काम है। So consumer protection में तो it's extremely important that there are जितने हम mechanisms बना सकते हैं हमें बनाने चाहिए। बिल्कुल नहीं। So what I learned from this session, और तलहा आप और नुमान भी हमारे साथ सुन रहे हैं और शमीम, I think हम एक follow up session इसी का कैंडिडेट विद पाशा का e-commerce policy के अंडर ही हम specifically consumer protection के ऊपर रखते हैं। और आयशा अगेन आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, और हम बाकी भी कुछ और लोग हमारे और भी पैनल पे पाशा के जो लीगल टीम्स हैं उनको भी, और जो कंज्यूमर काउंसिल वाले हैं उनको भी इनवाइट करेंगे ताकि हम उसको और फर्दर इम्प्रूव कर सकें। तलहा आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा, मिस आयशा ने अपना ईमेल आईडी शेयर किया है ऑफिशियल चैट में, वो अगर आप प्लीज फेसबुक पे और उधर जो फ्रीलांसर्स अगर कमेंट करें, अगर आप उनसे भी शेयर कर सकें ताकि वो कमेंट्स डायरेक्टली मिनिस्ट्री तक पहुंच सके, उनके रिकमेंडेशन और सजेशंस। इसके अलावा जी हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है फ्रॉम शमीम, जो हमारी इसकी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं कैंडिडेट पाशा की। सो शी इज नॉट इन द फ्रंट राइट नाउ बट शी इज बिहाइंड द सीन्स। उनका एक कमेंट है जी, द विमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव एज पार्ट ऑफ द नेशनल ई-कॉमर्स काउंसिल इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव दैट विल अलाउ टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ अराउंड 49% डाइवर्स टैलेंट. The Ministry of Commerce has given us a lot of hope in the system, and if we are to improve the export revenue through IT sector, we must include and train small business owners, especially women, and give them access to global consumer. Bilkul Shreem, is pe I think there's no confusion. Everyone is on the same page, and specifically the policy has a highlight on 4 main core points, including women, SMEs, freelancers, youth, and exports. So I think there's no confusion about this, and thank you for re-highlighting this. And again, I'm sorry I keep नहीं, please, we want to be very democratic. But बहुत these are very pressing issues. अब ये जिस तरह women की बात हो रही है, you know, including them within the e-commerce sector, there's a huge problem of women trying to obtain credit cards or even open bank accounts. So इसके लिए if we can find alternative mechanisms to, you know, provide them with digital identity or raise funding for them in other ways where they don't have to use credit cards, maybe या उनकी legal online authentication के लिए कुछ और अगर किया जा सकता है, because हमारे laws इस तरह के हैं where women are dependent on guardians in a lot of different ways. Land में भी जो land disputes हैं या buying and selling of land भी है, वहाँ पे भी raising capital और finance में भी, opening bank accounts में भी. So I think the law is not very supportive in that. If the technology, I think we can certainly take part. बिल्कुल, in terms of e-commerce policy. can take it up. जी.
जी आयशा, इस पे थोड़ा आपके कोई सा थॉट? इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं। देखें, तो ये है कि हम खवातीन को ये भी ना समझें कि वो कोई बिल्कुल ही मजबूर पड़ा हुआ बर्तन है जिसके लिए सब कुछ करके उसको देना है। दे आर वेरी एम्पावर्ड, और अपनी आईडी के बारे में दे शुड बी वेरी कॉन्शियस। उनका कोई वोट नहीं होगा, उनको पाकिस्तान में कुछ नहीं मिल सकता अगर वो अपना आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगी। दे शुड नो दिस राइट। वो जैसे ही उनका आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल, आपकी फैमिली का कार्ड भी बनता है, एंड एज सून एज यू आर 18 से आप ऊपर है, आपका अपना एक आइडेंटिटी है। उसको आइडेंटिटी को हासिल करना, उस कार्ड का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी, कि जी जो आपके नेशनल आईडी के प्रोसेसेस प्रोसीजर्स हैं वो अब इतने सिंपल ऑनलाइन हो गए हैं कि वो सारे फैलाने चाहिए। ये मैंने काफी इशू आता है, लोग कहते हैं कि जी वो रूरल एरिया में तो औरत का आईडी कार्ड नहीं है। भाई आईडी कार्ड नहीं है तो बनवाए ना। और देखें, उसको पता होना चाहिए कि वो उसका आईडी कार्ड मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नेशनल आईडी कार्ड नहीं है तो आप उसी से तो लिंक्ड हैं आपकी बहुत सारी चीजें। और फर्दर अगर डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंट्री होनी है तो हो सकता है आपकी हेल्थ सर्विसेज, आपकी एजुकेशन सर्विसेज, बहुत सारी चीजें आपकी आईडी नंबर से लिंक्ड होंगी। तो आई थिंक ये बिल्कुल जरूरी है कि हम इस चीज की अवेयरनेस औरतों को दें कि आपको आईडी कार्ड अपने जरूर बनवाने हैं। और इसमें तो आई थिंक कोई इतना हमारी सोसाइटी अच्छा, काफी ये स्टेप एक ओपन आगे भी की हो बात चुकी कर है। रही हैं क्रेडिट कार्ड्स जी, भी जी। अनुष्या बात कर रही है बैंक अकाउंट ओपनिंग, आईडी कार्ड से बैंक एक स्टेप अकाउंट, आगे वाले जी। हाँ नहीं, वो देखे ना, अगर क्रेडिट आप कार्ड्स की जी। वो देखे ना, अगर आपकी आइडेंटिटी कार्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ बैंकिंग होगी, अगर वो आपके अकाउंट, आपके आइडेंटिफिकेशन जो आपकी इनिशियल हुई हुई है कहीं पे, उससे सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना हम। तो अगर उस सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस में जो एक नादरा का डेटाबेस है, अगर उसके अंदर सबसे पहले आप उनको लेकर आए, उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं कि जिसमें वन वुमेन वन अकाउंट का एक इनिशिएटिव है, जिसको हमारी ये एहसास वाली मिनिस्टर जो है सानिया, वो लीड कर रही। तो वो जो जरा डिसएडवांटेज वुमेन है उनके लिए भी इनिशिएटिव इस तरह के बहुत सारे कोशिश की जा रही है कि जो जिनका एक्सेस नहीं है। मगर आई थिंक ऑन द अदर हैंड, ये जो मोबाइल अकाउंट्स, और अगर ये चीजें सस्ती होंगी ना, और आपका एक्सेस टू मोबाइल फोन सस्ता होगा, और मोबाइल फोन का वॉलेट सस्ता होगा, उसमें पैसे रखने से आपको कोई सेविंग इंटरेस्ट मिलेगा, दिस विल इंक्लूड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और औरतें इतनी ज्यादा समझदार हैं, सफाई करने वाली जो घर में आती है वो उसके पास 4 किस्म के मोबाइल होते हैं। तो औरतों को तो देखें, अगर आप एक्सेस मिलना शुरू हो तो आप इतनी ज्यादा समझदार हो गई हैं कि वो बड़ी तेजी से चीज अडॉप्ट करती हैं, बल्कि वो अपने घर के मर्दों को सिखा रही होती हैं। बिल्कुल नहीं जी, आई थिंक आई एग्री। और वैसे अनुष्या, ऑन अ थॉट, सेकंड थॉट, मैं वही सोचा था कि अगर एक खातून के पास या एक लड़की के पास आईडी कार्ड है और एक्सेस टू अ डिवाइस है, बट अगेन उसमें आयशा हमारा आईटी वाली बात आ जाती है कि डिवाइसेस जो हैं वो इतना चीपर होना और वो अलग पार्ट है। बट अगर वो डिवाइस है तो फिर तो आप मोबाइल वॉलेट पे के लिए तो कोई गार्डियन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बट वी कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस एज वेल, बिकॉज अगर आप सिम पे, इजी पैसा पे, जैज कैश पे आप अपना मोबाइल वॉलेट अकाउंट इमीडिएटली खोल सकते हैं रिमोटली, और उसकी बेसिस पे फिर आप फर्दर यू कैन बिल्ड अपॉन योर बैंकिंग हिस्ट्री। बट जस्ट अ थॉट के वो मेरे ख्याल में, बट आई थिंक वी नीड टू हैव अ सेशन ऑन दैट कि इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में विमेन की इंक्लूसिविटी कैसे इंक्रीज की जाए फर्दर। शमीम का एक और कमेंट था जी हमारे पास। आई नो वी हैव आवर लास्ट 10 मिनट्स, सो I'll just try to wrap up quickly, but शमीम का एक हमारे पास कमेंट था जी कि to improve financial inclusion and direct people towards a cashless economy, the state needs to bring in incentives similar to what PRA introduced for online payments via e-commerce in Punjab. Is there something similar that is coming? तो बेसिकली आयशा, शमीम ये कह रही हैं कि जिस तरह पीआरए ने हमारे रेस्टोरेंट्स में जाना और वो ऑनलाइन पेमेंट करने का जीएसटी कम किया है, आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपनी जो टैक्स रिकमेंडेशंस बिल्ड अप कर रहे हैं फॉर ई कॉमर्स, उस वैल्यू चेन में भी अगर हम ऑनलाइन ऑर्डरिंग और ई कॉमर्स पे टैक्स की किसी तरह से बेनिफिट दे सकेंगे तो आई थिंक इट विल इनकरेज पीपल टू कंसिडर मोर ई कॉमर्स एंड मोर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। सो जी बिल्कुल, आई थिंक जी प्लीज। मैं अगर इसमें चीज़ वाली ऐड करना चाहूँगा, मैंने कुछ प्रोविंसेस में ये रिकमेंडेशन भी दी थी कोविड के दौरान कि आप जो हैं, जो एसएमईज हैं या माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको आप टैक्स फ्री आप उनको अलाउ करें कि वो सॉफ्टवेयर्स प्रोक्योर कर सकें या सब्सक्राइब कर सकें, ताकि वो अपने जो भी सेलिंग है वो उसको ऑनलाइन कर सकें। हमें सिर्फ
बायर्स को नहीं देखना कि दे कैन गेट समथिंग एट अ लोअर फी, हमें ये भी देखना है कि जो सेलर है क्या वो अफोर्ड कर सकता है, Very क्योंकि उसके important. पास ना उसको अवेयरनेस है और ना उसको पता है मैं टेक्नोलॉजी कैसे डिप्लॉय करूंगा. सो वी हैव टू मेक द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक इट अफोर्डेबल एज वेल. तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि अभी उतना अटेंड नहीं हो रहा, क्योंकि वो ज़्यादातर जो एंटरप्राइजेस हैं वो इस कन्वर्सेशन में नहीं है. वी टॉक टू वेरी हाई एंड रिटेलर्स. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि प्रोविंसेस को जिसको पिक करना पड़ेगा. और मैंने सजेशन ये दी थी कि आप 3 साल के लिए GST वेव कर दें उन सॉफ्टवेयर पे जो आप लोकली सब्सक्राइब करते हैं या प्रोक्योर करते हैं, जिसमें पॉस सिस्टम है, ERP है, CRM है. इनको आप करें ताकि अपने सिस्टम्स को इवन डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल एडवाइजिंग मैं कहने लगा था, ताकि हम बिल्कुल इनको very वो important. अपनी शॉप को ई-शॉप बना सके. ये बहुत अहम रिकमेंडेशन है एंड इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड सेकेंडरी. बिल्कुल ठीक है जी. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. हम इसका एक पूरा जो भी बात करें हम विल गेट समराइज एंड कंसोलिडेट ऑल द रिकमेंडेशंस एंड पुट इट इन द एक्शन आइटम्स एज वेल. एक मरियम मुहियुद्दीन का हमारे पास पॉइंट आया जी. उन्होंने कमेंट किया, द एस्क्रो सर्विस इज अ फिनोमिनल आइडिया इन द शॉर्ट टर्म, होप टू सी इट कम टू फ्रूटेशन सून. So Shahzad, I think you have audience for the escrow service, so आप देख सकते हैं consumers ने they have immediately liked it. फारिस ने वही क्वेश्चन किया है क्वालिटी ऑफ सर्विस का. आई थिंक कंज्यूमर पे हम वो बात कर चुके हैं. उमैर निज़ाम साहब का हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, पॉइंट आया. वन ऑफ द वेज टू फिल द ट्रस्ट डेफिसिट इज टू हैव ई-कॉमर्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टेकन पार्ट विद एन एस्केलेशन ऑप्शन. द प्रॉब्लम एट बोथ साइड्स, the buyer has less trust in the seller while there are many buyers who abuse sellers. बिल्कुल जी उमैर, totally understand कि consumer और merchant protection दोनों की हमें improve करने की जरूरत है प्रोसेस को. तो yes, let's हम plan करें अभी से ही. We'll plan another dedicated session on Candid with Pasha, especially on consumer protection. We could see कि ये एक sensitive issue है. एक और सवाल आया है कि जी निसार साहब का, how can we learn from our neighboring countries' success in this field? What made successful and why we are lagging behind? In Nisar, is pe we can always have a conversation, deep dive. But I think we are also learning. मैं बात सॉरी मैं इसलिए बात कर लेता हूँ क्योंकि पॉलिसी की डिस्कशन है. Our neighboring country took off when they went for the demonetization. So open the page of history. The only reason why they sort of skyrocketed, Paytm ले लें, ये सब चीजें ले लें. उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट्स हैं तो आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो सस्ता मिलेगा. सो इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव, उन्होंने कैश को डिसइंसेंटिवाइज किया और उन्होंने डिजिटल को इंसेंटिवाइज किया. देयर इज नो मैजिक वैंड टू इट. कुछ पॉलिसी इंटरवेंशन हैं जो करनी पड़ेंगी. बिल्कुल ठीक है जी. आई थिंक जी आयशा, मैं आ रहा था आपकी तरफ ही कि लास्ट 5 मिनट्स आई वुड लाइक कि आप सब ने अगेन गोइंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ स्पेसिफिकली फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव ऑफ ई-कॉमर्स इंडस्ट्री का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है. आयशा, मैं आप ही से शुरू करूंगा कि प्लीज आपने जो आज की हमारी कॉन्वर्सेशन कमेंट्स सुने हैं हमारे ऑडियंस के, आपका उस पर क्या थॉट है. एंड शमीम भी आ गए हैं. शमीम वुड लव टू हैव योर थॉट्स एज वेल. तो आयशा प्लीज गो अहेड. अभी प्लीज अगर आप कुछ भी चीज ऐड करना चाहें जो हम शायद मिस करके हों, वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. बस मैं यही रिएटरेट करना चाहूँगी कि यही जो इंसेंटिव्स की बात है ना, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डिजिटल एडॉप्शन के लिए वी हैव टू कम अप विद फ्यू इंसेंटिव्स. बिहेवियर चेंज की बात है और ये हो नहीं सकता जब तक कि हम ऐसे इंसेंटिव्स ना लाएं जो कि इनकरेज करें और कैश को एक्सपेंसिव कर दें और डिजिटल के यूज़ को चीपर कर दें एज कम्पेयर टू कैश. तो इसके लिए वी होप कि हम सेकंड पिलर के ऊपर हमारा एक स्पेशली लोग काम भी कर रहे हैं एज अ वर्किंग ग्रुप. तो होपफुली उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस आएंगी एंड इन दी सितंबर NECC last week of September, we hope that by that time we will have some concrete suggestions and we will share with other public sector organizations for their feedback ताकि इसके ऊपर हम तेजी से काम कर सकें. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच आयशा जी. अनुषा, आप कोई चीज थॉट्स ऐड करना चाहें? आपको तो हमने अभी दोबारा तंग करेंगे फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मर्चेंट प्रोटेक्शन. I'm all for the policy. It's well drafted. From a legal editor point of view, मुझे थोड़े से issues हुए थे policy से because I don't know, you probably Ministry of Law से शायद आपको legal research आई हो. ADR को promote करना जरूरी है, but
there's a lot of research that still needs to be done in that regard. जहाँ तक दूसरे features की बात है, I'm all for them of course, but कोई भी as a rule of thumb, कोई भी technology या policy या कोई feature promote करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके accountability mechanisms क्या हैं. Without accountability, we should not be going, all in to promote something. जब तक उसके accountability mechanisms in place नहीं होंगे, तब तक I don't think कि radical change या वो overnight change उस तरह जिस तरह demonetization हुई थी, it left a lot of people at the mercy of the government essentially, or at the state. तो इस तरह के कोई भी, obviously I'm in favor of them as well, but accountability mechanisms have to be discussed beforehand. बिल्कुल ठीक है जी. जी शहजाद, any last thoughts, closing thoughts? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि we have to create incentive for the seller, we have to create incentive for the buyer, and that is the way for a sustainable growth. Private sector जो है वो जो campaigns run करेगा, that is only short-lived. Technology has solution to building trust. अभी एक चीज़ है, Google trusted stores एक चीज़ होती है. तो पाकिस्तान कैन क्रिएट द लोकल एक्रेडिशन बना सकता है. जो भी हम बात कर रहे हैं कि व्हेन यू कम ऑन द मर्चेंट वेबसाइट, तो मर्चेंट को खुद भी पता होना चाहिए कि दे हैव टू गेट सर्टिफाइड, राइट? सो आई थिंक they're all the journey towards that maturity, with the incentives to both of them, and to the technology. I think we have a very bright future inshallah, जिसके अंदर digital will be playing a role in much improved domestic consumption of goods and services, and also the export will be increasing inshallah. Thank you so much. Again, Aisha, आपका बहुत शुक्रिया आने का. I know आप policy drafting से लेके उसकी championing करने में within the public sector, और public sector को हर दफा private sector के साथ बिठाने में, I think you've played a very pivotal role as a very positive catalyst. Shamim, मैं आ रहा हूँ, आपको hand over करने लगा हूँ. I just wanted to thank everyone, and then I'm just going to hand you over. तो आयशा का बहुत शुक्रिया आपकी support का. आप हर दफा हमारे request पे you have also joined us. So हम आपको थोड़ा सा involve करेंगे ताकि हम इस policy की awareness further Pasha members and beyond, जो e-commerce के players हैं, women entrepreneurs हैं, young और freelancers हैं, सब तक ले जा सकें. कुछ लोग अभी लाइव देखते हैं, कुछ लोग अपनी कन्वीनियंस पे देखेंगे. हमें फ़ायदा इस अपने सेशन का ये है. अनुषे, अगेन आपका बहुत शुक्रिया. आई नो इट वाज अ शॉर्ट नोटिस, बट अप्रिशिएट के आपने ज्वाइन किया एंड शेयर्ड द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस. और अभी हम इसको डीप डाइव आपके साथ ऑफलाइन भी करेंगे. एंड शहजाद, अगेन थैंक यू सो मच. And you will think about paying me also sometime. जी, हम सब कोशिश करेंगे कभी ना कभी कहीं ना कहीं पैसे बनाएं इंशाल्लाह. ऑफ कोर्स वी आर ऑल कमर्शियल एंटिटीज, तो इवेंचुअली सबको फायदा होगा. ये आजकल सॉरी ये आजकल पता नहीं ये क्या ट्रेंड चल रहा है कि the government keeps asking for recommendations but they're not paying us. जी, ये नॉलेज इकोनॉमी का ये चैलेंज है कि खाली वहाँ नहीं है इशू गवर्नमेंट का, ये बिजनेसेस का भी इशू है. वो समझते हैं ये तो वैसे ही मिलना चाहिए, जब काम कराएंगे तो फिर पैसे देंगे. वो समझते नहीं है कि नॉलेज इकोनॉमी कंसल्टेशन इज एक्चुअली नॉलेज इज द गेम. तो बिल्कुल ठीक है. आई थिंक हमें ये ट्रेंड भी चेंज लानी है. तो इस चेंज मैनेजमेंट पे भी हम सब इकट्ठे लगे हुए हैं. तो फुली अंडरस्टैंड. एंड शहजाद, अगेन आपका शुक्रिया कि पेमेंट्स के एंगल से आपने हमारे साथ और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के एंगल से आपने you shared your thoughts, and also from Chairman Pasha perspective. Shamim, I'm sorry हम 1 मिनट ऊपर चले गए टाइम से, but over to you. Thanks for organizing all of this, और आप सब ने हमारे साथ हेड मिस्ट्रेस का काम सरंजाम दिया, टाइम पे लाने का, करने का. एंड अपॉलॉजीज कि हम आगे पीछे इसको थोड़ा सा करते रहे, but finally we have been able to bring all of us together. So thank you once again, Shamim, Talha and Noman. Over to you, Shamim. Thank you, Badar, and thank you to the panelists, Aisha, Anushe, and obviously Hamare Chairman Sahab. One thing that I only wanted to add, and it was a very good conversation, and I think you all highlighted on almost all the points that I wanted to hit through this session. But one thing, because obviously I am very big on diversity and inclusion. So one of the things that Anushe mentioned with regard to bank accounts, and then I know that Aisha also mentioned with regard to awareness.
I've been training girls in technology for the past 2 years. तो ये जो बैंक अकाउंट वाला जो मसला है ये it is not something small that we can sort of like nudge under the carpet, because even though कि अगर आप कहते हैं कि गार्जियन नहीं भी चाहिए, ठीक है, हम मोबाइल वॉलेट की बात कर रहे थे एंड ऑल दैट, जो हमारे यहाँ जो कल्चर है वो उसको अलाउ नहीं करता कि आप खवातीन को एक तो अवेयरनेस नहीं होती है, फिर वो कल्चर इतना जो है वो मेल ओरिएंटेड कल्चर है कि वो उसको बहुत पुश बैक करता है. सो आई थिंक a very a big holistic approach is required for awareness. Aisha, जब awareness की बात करते हैं, आपने जो है you guys mentioned about the specific pillar for the e-commerce policy where हम we are focusing on youth and women. तो उसमें जो women entrepreneurs हैं, जो role models हैं, उनको मेन स्ट्रीम में ला के इन खवातीन को ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है, because having been working in the IT sector for the last 15 years, I know that there is so much work out there that we can bring to Pakistan and then improve, the export revenue through the IT sector. I mean, the chairman would not disagree, but there knows about that as well. लेकिन जो हमारा challenge है ना, वो ये है कि जो हमारा 50% डाइवर्स टैलेंट है उसको हम टैप नहीं कर पा रहे, और इसका रीजन ये है कि हम उनको अवेयरनेस नहीं देते, उनको ट्रेनिंग नहीं करते. सो आई थिंक I am very hopeful that with the Ministry of Commerce taking so much interest into this, and also the government, that इस वाले area को हम ज़्यादा highlight करेंगे. So yeah, with that I'd like to thank you all again for your time. Thank you so much. जी बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू शहजाद, आयशा, अनुशे, शमीम, तला एंड नुमान. आप सबको हम तंग करते रहेंगे इस सीरीज में अपने कैंडिडेट विद पाशा में. दिस वाज जस्ट द फर्स्ट एवर सेशन ऑन ई-कॉमर्स, सो वील विद कैंडिडेट विद पाशा, तो we'll have more deep dive sessions or more specific, तो ताकि हम सारे pillars पे आहिस्ता-आहिस्ता बात कर सकें. Thank you once again जी. Thank you for taking time. Brother, thank you very much. I think you've done a wonderful job. It's a very engaging conversation. अब मैं TV host के लिए भी apply कर सकता हूँ as a backup अगर मैं. Thank you Shamim, Talha and Numan for arranging it, and thank you Anusha and Aisha. It's going to be a great conversation, and let's continue to work towards making things happen. Sure. Thank you जी. Allah Hafiz. Thank you जी. Thank you. everybody. Allah Hafiz जी. Thank you. Allah Hafiz.